تقریب کا آغاز کرتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے PAGH کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان پرویز جعفری صاحب موجود ہیں. عشرت آپا دوبارہ سے موجود ہیں اور آج ہم جعفری صاحب کی ہیوسٹن میں اردو ادب کی جو خدمات ہیں اس پہ مکالمہ کر پائیں گے. کافی عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا. ریاض بھائی آپ کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، فیض پر پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا اور اندازہ نہیں تھا کہ 2.5 سال کے بعد بھی یہ تواتر سے چلتا رہے گا. اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ لوگوں کا بڑا ساتھ ہے اور یہی خواہش تھی کہ جو ہمارے بڑے لیجنڈز ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر کے جو لیجنڈز ہیں ان پر بھی ہم تقاریر کر پائیں. تو اسی سلسلے میں آج ہم ممنون ہیں کہ جعفری صاحب نے اپنا وقت ہمیں دیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ سے اس تقریب کا آغاز کروں، میں یاد کرنا چاہوں گا اس ہستی کو جس نے ہیوسٹن میں سب سے زیادہ اردو ادب کے فروغ کے لیے کام کیا، بلکہ ابتدا کی ڈاکٹر ظفر تقوی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. میں ڈاکٹر فراز سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آ کے دعا کر لیں. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر فروخ احمد ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پہ ہم جمع ہیں، لیکن مجھے یاد آتی ہے کہ ڈاکٹر ظفر تقوی جو تھے وہ اردو کے بہت ہی اصلی ممبر رہے ہیں. 1977 میں اور 78 میں بزم ادب اردو قائم کی، جس میں میری بھی ان سے ملاقات 50 سال پہلے ہوئی تھی. میں بھی ان کا ساتھ شاگرد تھا اور دوست کی طرح ساتھ تھا اس میں. تو وہ اس میں تھا کہ ہر ایک کو شاعر آپ جب بھی آ سکتے ہیں، اگر آپ کچھ مصرع طرح کہیں کچھ شعر پڑھیں، کم سے کم 3 شعر، تو اس کے زور سے کافی لوگ شاعر بن گئے. اس میں تھے ایک میری ہستی گئی. بہرحال ان کو یاد کر کے میں آپ سب لوگ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست اردو کی ہستی تھی. وہ انجینئر جو تھے وہ مارے ہوئے اپنی فیلڈ میں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ان کے جنازے میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنی ان کی شہرت، وقت اور عزت تھی اس شہر. تو ان کو یاد کرتے ہوئے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی دعا کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ وہ جیسی محبوب اور پیاری ہستی تھی جنہوں نے بہت لوگوں کی مدد کی ہے، ان کی ہمیں کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. اب وہ چلے گئے یہاں سے، لیکن اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی کمیوں کو معاف فرما اور ان کو بخش لے اور ان کو جنت الفردوس میں بہت ہی اعلیٰ مقام عطا فرما. ایسے ہمیں بہت خوشی ہوگی. آمین. ڈاکٹر ظفر تقوی کی یاد میں ایک تعزیتی پروگرام بھی کریں. ہم نے یہ روایت بھی قائم کی ہے جب ہم نے بخش صدوہ کے لیے اور جناب عقیل اشرف کے لیے بھی تعزیتی پروگرام کیے تھے. تو ظفر تقوی کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ کریں. ماشاءاللہ جو ڈاکٹر ظفر تقوی نے ہیوسٹن میں ادب کے فروغ کے لیے جو سلسلہ مشاعروں کے ذریعے اور دیگر جو ان کی کاوش تھی، جو کارواں انہوں نے شروع کیا، اس میں کچھ عرصے کے بعد جعفری صاحب بھی جڑ گئے. اور آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جعفری صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ہیوسٹن میں اردو کو فروغ دینے کے لیے اور ادروائز اردو کو جنرلی فروغ دینے کے لیے، آج اس
پر ہم بات کریں گے. میں اس سے پہلے کہ ہم مہمان کو اوپر مدعو کریں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم چلاتے ہیں. آداب عبداللہ بھائی، آداب. کیسا مزاج ہے؟ دورہ پاکستان کیسا رہا آپ کا؟ دورہ پاکستان بہت اچھا رہا، ذرا بھاگ دوڑ زیادہ ہو گئی کیونکہ پہلی مرتبہ میں یعنی میرا دورہ جو شروع ہوا تھا ایک کنونشن سے، تو احباب کو پتہ چل گیا ادھر ادھر، تو میں اس وجہ سے زیادہ مصروف ہو گیا، ورنہ کہ میں بہت خاموشی سے جاتا ہوں اور خاموشی سے ہندوستان پاکستان میں چلا آتا ہوں تاکہ زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے ادھر ادھر. آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے ہمارے پرویز جعفری بھائی کے سلسلے میں. ان کے ریکگنیشن لائف اینڈ اچیومنٹس آف پرویز جعفری بھائی، پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن کے سراج نارسی صاحب کی اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ پرویز بھائی کے لیے ہیوسٹن میں ایک پروگرام ہو. تو ہم نے سوچا کہ کیا اچھا ہو کہ آپ شامل ہو جائیں، غائبانہ ہی صحیح. ابھی آپ پاکستان سے آئے ہیں، ورنہ اچھا تو یہ ہوتا کہ یہیں ہوتے، آپ ہیوسٹن میں ہوتے اور اسٹیج پہ ہوتے ان کے ساتھ. تو ہمارا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی پرویز بھائی سے اور کس سلسلے میں ہوئی؟ عبداللہ بھائی. پرویز سے ملاقات میں پرویز سے واقف تو تھا، لیکن ملاقات یا ان سے براہ راست گفتگو جو ہے وہ 2001 میں ہوئی. لیکن وہ جب یہ ہوئی کہ جب ہماری 5-7 ایسوسیشنز بن گئی علی گڑھ کی، اور یہ میرے اوپر دوبارہ پریشر ہوا کہ صاحب ہم ایک فیڈریشن بنائیں جس میں تمام ایسوسیشن ساتھ کام کریں. تو اس وقت میں نے پرویز کو کال کیا تھا، ایک کمیٹی بنائی تھی نیشنل کہ اس پہ سرو کریں، تو انہوں نے اس پہ لبیک کہا، اور جب سے لے کے آج تک پرویز جو ہیں وہ فیڈریشن کے کاموں میں اسی نماغ سے لگے ہوئے ہیں. اور یہ تو، اور اس کے 2-3 سال کے بعد جب فیڈریشن اسٹیبلش ہو گئی، تو جو مشاعرہ 1975 سے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن واشنگٹن ڈی سی کے بینر میں ہوتا تھا اردو مرکز انٹرنیشنل کے تعاون سے، وہ بعد میں پھر فیڈریشن کے ساتھ ہو گیا، فیڈریشن اور اردو مرکز کے ساتھ. پھر اس میں پرویز شامل ہوئے، اور ظاہر ہے کہ پرویز کو شاعری سے اور اس سے مجھ سے زیادہ تجربہ تھا کہیں، کیوں تو بہت خوش اسلوبی سے انہوں نے اس کو بڑھایا، ایک نظم قائم رکھا. تو یہ سب اچھی باتیں تھیں. لیکن پرویز کے بارے میں بات کرنے سے، پرویز کو سمجھنے کے لیے، اصل میں پرویز کا تعلق جس گھرانے سے ہے یا جس دیار سے ہے، دراصل وہاں پہ سیاست اور ادب ساتھ ساتھ چلتے تھے. اور وہ اس معاشرے میں پلنے کے بعد، بچپن گزارنے کے بعد جب وہ علی گڑھ آئے، تو ان کو ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور مواقع ملے. تو پرویز کافی ایکٹیو تھے وہاں کی اسٹوڈنٹ یونین میں، جو میں نے سنا ہے اور وہاں پہ جو آفتاب حال کی میگزین تھی اس کے ایڈیٹر بھی رہے. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں علی گڑھ میں ایک گروپ تھا ینگ پوئٹس کا، جس میں بشیر بدر تھے، آشفتہ چنگیزی تھے، طارق سبزواری جو طارق بدایونی تھے اس وقت، جی جی. مہتاب عالم تھے، پرویز جعفری تھے. تو یہ گروپ کو میں اکثر بیشتر کہتا ہوں یہ گینگ تھا. اس لیے گینگ تھا کہ یہ لوگ جاتے تھے تو مشاعرہ لوٹ کے آتے تھے. کیا اور تو اس طریقے سے بہت ایک بھرپور انہوں نے علی گڑھ میں جو زندگی گزاری تھی، بھرپور. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ زندگی بدلی، شادی ہو گئی، پھر یہاں آ گئے. تو یہاں جیسے ہم سب آئے، تو ہم سب جو ہے لگتا تھا نا کہ کسی درخت کے ایک شاخ کاٹ کر کے ایک گملے میں لگا دی گئی، اسی طرح سے پرویز بھی اس سے گزرے. تو ساری ترجیحات یہاں آنے کے بعد زندگی کی سٹرگل میں بدل جاتی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی میرا مشاہدہ یہ ہوا کہ جو عملی سیاست تھی وہ ذہنی سیاست میں بدل گئی، اور جو تخلیقی صلاحیتیں تھیں، ان کی کاوشیں تھیں، وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ انتظامی چیزوں میں تبدیل ہو گئی. تو انہوں نے جو شاعری کم کرنی شروع کر دی، اور اس میں میرے خیال سے شاید آپ کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ
जब इनकी शादी हुई जी जी। तो वो इशरत आफरीन से, तो सरदार जाफरी साहब ने, जो इनके चचा हैं, सरदार जाफरी साहब ने एक नसीहत की कि बेटा अगर जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आए कि तुम दोनों में एक ही शायरी कर सके, दूसरे को जिंदगी की दूसरी जरूरियात पूरी करनी, तो ये काम तुम इशरत के जिम्मे कर देना। तो क्या 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 कहने। परवेज ने वाकई उनको, उसको बहुत संजीदगी से लिया। और मैं समझता हूँ कि ये सब हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि आज इशरत जो है, बहुत प्राउडली हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड सीन पर एक नाम है शायरी की दुनिया में। और बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। परवेज के कोऑपरेशन से, परवेज के उन्हें उसको अगर सराहा नहीं होता तो शायद ये चीज नहीं होती। तो एक एक जो एक देसी शौहर की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ा कारनामा है जिसको अक्सर लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते। परवेज ने जो ये काम किया। नहीं, बहुत 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 बड़ी सेक्रीफाइस है और परवेज भाई की, और हमारी उनसे ये गुफ्तगू अभी एक दो दिन पहले रात को हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि हमने चचा जान से जो वादा किया था उसे निभाया और पूरा किया और कर रहे हैं। और और वो ये आसान काम नहीं है कि आप एक तख्लीकी अमल को बिल्कुल एक साइड में रख के, और उन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया हर तरह से इशरत आपा को, ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और नहीं, और फिर ये यहाँ आकर के आज से कुछ साल पहले, मतलब तक ये था कि जब माहौल ऐसा नहीं था कि उर्दू वाला आदमी के लिए, आई मीन दाल रोटी कमाना वो अपने प्रोफेशन में रह करके जरा मुश्किल काम था। बड़े पापड़ बेले लोगों ने। तो परवेज की सेक्रीफाइसेस या फैमिली और उसके अलावा जो और कारकर्दगी थी फेडरेशन बनाने में, जो उनको 24 साल तक उसकी खिदमत की, फिर जब मुशायरे में लगे तो वाकई उनका चूंकि बैकग्राउंड था, तो उसको फरोग देने में और उसके मेयार को बरकरार रखने में बहुत बड़ा कारनामा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम ह्यूस्टन की पाकिस्तान एसोसिएशन ने इसको सराहने के लिए शाम की। तो उस एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देना चाहिए, और परवेज को भी ढेर सारी मुबारकबाद। और आप लोगों को अल्लाह मियां अच्छा रखे इसे ही। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो इस ये जो अभी आप आए हैं वापस, और जैसे ही हमने, बल्कि ये रिक्वेस्ट जो हमने आपसे की, दरखास्त, ये भी एक मुतबर्रिक जगह पे आप उस वक्त थे जब हमने आपको इत्तला दी कि ऐसा हो रहा है, और आप मदीने में थे उस वक्त। हाँ हाँ। तो नहीं, मैं वाकई आता, मैं कल से मुझे खांसी आने शुरू हो गई है, तो मैं नहीं तो परवेज के लिए हम शायद ये ट्रिप लगा लेते। तो एक दफा हम आए हुए थे मिशिगन से, अब्दुल्ला भाई, और यहाँ पे हम्म। अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का मशायरा होना था। तो हम्म। जावेद भाई ने कहा कि वो परवेज ने बुलाया है, और ये सारे शायर जो हैं इस वक्त ये हॉलिडे इन में हैं, वहाँ पे बैठक हो रही है, चलो तुम भी चलो साथ में। हम्म। तो हम और जावेद भाई पहुंचे, और एक कमरे में तमाम मारूफ शोरा जो थे उनकी बैठक चल रही थी। बशीर बद्र साहब भी आए हुए थे। उनके कोई 300 इंतखाब हुआ था, 300 अशार का या 360 अशार, हाँ। वो किताब थी, वो पहली दफा। तो वहां गुफ्तगू चल रही थी, और अचानक दरवाजा खुलता है, और एक परवेज भाई बैठे हैं, इरशाद आपा, सब लोग बैठे हुए हैं, दरवाजा खुलता है अचानक उस कमरे का, और एक खातून नमूदार होती हैं, और वो कहती हैं, भाई अजीब किस्सा है, 2 घंटे रह गए हैं मशायरे में, हमें तो अभी शैम्पू करने हैं बाल, और यहाँ पे आपके कमरे में शैम्पू नहीं है इस होटल में, और हम ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। अब परवेज भाई का एक गाय और एक चाय, तो नाम तो फिलहाल रहने देते हैं, लेकिन नाज़िम आला को इन तमाम मराहिल से गुजरना होता है। मैं, परवेज इस मामले में बहुत अच्छे थे। जी जी, उन्होंने सबको डांट वुट करके ठीक कर देते थे लोगों को। हम लोग तो तकल्लुफ, मेरे परवेज जो है वो डांट लगाने में बहुत तेज थे। जी जी जी। अब है नहीं, मतलब है। डांटने वाला जो उनकी फैकल्टी है डांटने वाली, वो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम व कायम दायम है। वो किसी को भी किसी वक्त डांट सकते हैं, और ये लाइसेंस है, पॉलिटिकल लाइसेंस उनके पास है ह्यूस्टन में।
تو دعا ہمارے لیے یہ کیجئے کہ یہ شام خیر و عافیت سے گزر جائے، اور کیونکہ گفتگو ہم ہی کر رہے ہیں ان سے، اور ہمیں امید ہے کہ شام بہت اچھی ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگ آپ تک پہنچے گی عبداللہ بھائی۔ عشرت آپا کے لیے اور پرویز بھائی کے لیے کمبائنڈ کیا پیغام دیں گے آپ؟ عشرت آپا اور پرویز بھائی کے لیے اللہ جوڑی کو سلامت رکھے، اور عشرت ایسے ہی لکھتی رہے اور پرویز اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے۔ اللہ ان کی ڈانٹ والے فیکلٹی کو کم کر دے، کیونکہ ایک اچھی شخصیت ہے، اکثر بیشتر لوگ ان کو غلط سمجھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور صحیح ہے۔ اللہ دونوں کو خیریت سے رکھے، باصحت رکھے، ان کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہماری واشنگٹن ہیوسٹن کی پاکستان ایسوسی ایشن ان کی خدمات کو سراہ رہی ہے، جو اوور ڈیو تھی۔ جی، یہ بہت کتاب اور بہت چائے کا سلسلہ سراج نارسی صاحب نے شروع کیا، اور کیا اچھا شروع کیا کہ دیکھیے مہینے میں ایک دفعہ کتاب کا اور لکھنے والوں کا تذکرہ ضرور رہتا ہے شہر ہیوسٹن میں اب۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ نہیں، ہیوسٹن میں اس وقت میں سمجھتا ہوں امریکہ کے اندر نیو یارک اور ہیوسٹن دو جگہ سب سے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو لوگ بھی ہیں بہت فعال ہیں، کام کر رہے ہیں کافی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، طبیعت اپنی آپ ٹھیک کیجئے، دوا تھوڑا سا اچھی پری ایمپٹیو کوئی لے لیجئے گا، اینٹی بائیوٹکس وغیرہ کا کورس، تاکہ زیادہ خراب نہ ہو عبداللہ بھائی اور طبیعت۔ دیکھیے کل پرسوں تک دیکھتا ہوں، اگر نہیں ہوں گے تو جا کے لے آؤں گا پھر۔ آپ کے بہت شکریہ۔ وقت کا بے انتہا نہیں شکریہ۔ بھائی، یہ وقت کا شکریہ نہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا، اور پرویز کے لیے اینی ٹائم۔ اور اللہ ان کو دونوں کو صحت مند رکھے، اور آپ کو بھی صحت مند رکھے، اور اسی طرح سے ملاقات ہوتی رہے۔ فی چلیے، امان اللہ، فی اچھی امان بات ہے، اللہ۔ فی امان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میں ذرا جعفری صاحب سے اور شعر و شاعری سے ہٹ کر ایک بات کروں گا۔ میں 2010 تک ہمارا قیام کینیڈا کیلگری میں تھا۔ شادی کو 35 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیگم کے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کی ہے اپنے رشتہ داروں۔ اچھی بات ہے، آفرین ہے۔ جی، تو 2010 میں کچھ ایسا سلسلہ ہوا کہ میری ساس سسرال سب کینیڈا میں کیتھلی میں، تو پاکستان سے میری بیگم کے ساس اور سسر کا امریکہ آنے کا پروگرام بنا۔ میرا بھی دل کرا کہ میں اپنی بیگم کی ساس کے قریب رہوں تو اچھا ہے۔ مجھے اپنی ساس سے زیادہ اپنی بیگم کی ساس سے بہت محبت ہے۔ ہم 2010 میں یہاں آ گئے۔ میرا خیال ہے 2011 یا 12 میں علی گڑھ کے مشاعرے میں جانے کا اتفاق ہوا نور علی بھائی کی توسط سے۔ $25 کا ٹکٹ لیا تھا، اور اس وقت پہلی دفعہ پرویز جعفری صاحب کو میں نے دیکھا کہ انتظامی امور میں کس طرح سے اسٹیج سے اوپر نیچے بھاگ دوڑ کر کے سارے معاملات کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، اور جس جانفشانی سے محنت سے جس ڈسپلن کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ مشاعرہ کیا، وہ ہماری آپ سے پہلی ملاقات تھی، لیکن آپ کو بالکل اوبیسلی یاد نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں گوشہ نشین ہو گیا تھا جب پتہ لگا کہ پی ایچ ایس کے کیا حالات ہیں۔ جس طرح سے جعفری صاحب نے عشرت آپا کے فن کو، ان کے کلام کو، ان کے فکر کو سپورٹ کیا ہے، آفرین۔ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ماڈریٹر جناب عدیل زیدی صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ کتاب اور چائے ممکن نہ ہوتا اگر عدیل بھائی اور الیاس بھائی کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔ آج اگین ایک خوش نصیب دن ہے، خوش نصیب شام ہے کہ عارف بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کبھی کبھی گرفت میں آتے ہیں، آج آ گئے ہیں۔
तो प्लीज आप भी स्टेज पे पहले आता है मेहमान खुशी को खाने में बुलाइए। इस्तेमाल हो गया आप इस्तेमाल करेंगे और आज हमारे शुरुआत करें मेहमान खुसूसी जनाब परवेज जाफरी साहब। ये गुफ्तगू एक ऐसे शख्स से हो रही है कि जिससे बेहतर निज़ामत मुशायरों का सिलसिला जो है हमारे ख्याल में इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में कोई और नहीं है। तो परवेज़ भाई के लिए आरिफ इमाम भाई जो हैं, इनकी फराहमी जो है वो जुएशीर लाने से कम नहीं आजकल। लेकिन एक दिन रात 10:30 बजे उन्होंने फ़ोन उठाया और वादा किया और फिर साथ में ये भी कहा कि तुम मुझे टेक्स्ट कर देना संडे को, याद दिला देना, याद नहीं रहता है। तो वही हसन भाई लेके आए हैं, नूरी भाई, आप सबका शुक्रिया। देख के इस कदर खुशी हुई क्योंकि आज की गुफ्तगू आप ही से शुरू करनी है, क्योंकि आप पाकिस्तान से साथ हैं परवेज़ भाई के। तो मैं ये माइक्रोफोन देता हूँ आपको फिलहाल, और मेरा तो ख्याल था कि बजिया को भी बुला लेते, क्योंकि हमारी और बजिया की जो मुलाकात है परवेज़ भाई से तकरीबन कमोबेश एक ही साथ है ना, बल्कि पहले की है। हमारी जो मुलाकात मीर साहब, मैं मीर साहब कहता हूँ उनको, और उसकी दो वजूहात हैं मीर साहब कहने की। एक तो ये कि वो एक दस्तूर था उस जहाँ से ताल्लुक़ है बलरामपुर से या हिंदुस्तान में, कि वहाँ सादात को मीर साहब के नाम से पुकारा जाता था। और फिर दूसरी वजह आपने अब्दुल्ला साहब की बयानी सुन ली कि वो हमारे मीर तकी मीर का जो मिजाज था वो भी बदल जाता, वो हमारे मीर साहब में पाया जाता है। तो मैं दोनों लहाज से मीर साहब कहता हूँ। तो हमारी इनसे पहली मुलाकात परवेज़ भाई से 86 में एक नौजवान थे हम और इनकलाबी थे, और बड़े हद तक क्या मुकम्मल सुर्खे थे, अब भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त मुकम्मल थे। तो वहाँ एक गोल्डन जुबली तरक्की पसंद अदब की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे राहत भाई, राहत सईद बहुत फ़ाल थे, और बहुत सारे हमारे जो सीनियर उसके साथी थे। वहाँ परवेज़ भाई तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ तमाम नौजवान जो भी थे जाके, हमारे ये भी नौजवान ही थे, हमारी एज ग्रुप के थे, हम मिले थे। तो ये एक ताल्लुक़ उनका हमारा, मैं समझता हूँ कि ह्यूस्टन में अगर सबसे किसी का कोई कदीम ताल्लुक़ है तो वो मेरा और मेरे साथ है। फिर ये कि जब मैं यहाँ आया तो मेरी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ भी परवेज़ भाई की ही मुशायरों से हुआ। कि मैं जब आया मुझे कुछ लोग वाक़फ़ नहीं थे, नहीं जानते थे, और फिर यहाँ ह्यूस्टन में हाल 2003 में मुझे यहाँ बुलाया कैलिफोर्निया से। फिर जब यहाँ आ गया तो यहाँ शायद मुझे, तो परवेज़ जाफरी का जो है ज़्यादा मुलाकातें उनसे हमारी ह्यूस्टन में है, और उनके मिजाज और उनकी इंतज़ामी सलाहियतें, शेरी सलाहियतें तो हम वाकिफ़ थे। वो आए ऐसे शख्सियत हैं कि अगर जब आप उनका माजी को देखना शुरू करें तो जैसे अलीगढ़, और अलीगढ़ का मामला ये है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूँगा। एक उमर नज़मी का एक शेर मुझे याद है, थोड़ी सी तब्दीली है उस शेर में और उसमें इनके मामलात में, कि निकाल लाया हूँ इसी तरीके से है कि एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ये अलीगढ़ से निकल तो आए लेकिन से अलीगढ़ अब्दुल्ला भाई जैसा आदमी भी नहीं निकाल सकता ये लगे उसके अंदर। तो ये अलीगढ़ को एक पिंजरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक तिलिस्म का जरूर था कि जो तिलिस्म का असीर हो जाए वो इससे
रहा नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ी और सराहत से कहना चाहूँगा जो अब्दुल्ला भाई ने कही अपनी गुफ्तगू में कि बजिया और परवेज भाई की जो अज़दवाजी ज़िंदगी है तो देखें उसमें होता ये है कि एक आम मुशाहिदा है कि एक शोबे के अफराद जब एक अज़दवाजी बंधन में बनते हैं तो और ख़ास तौर से वो शोबा जिसका ताल्लुक आर्ट से हो, एक नफ्सियाती वजूहात हैं इसकी, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे देखे जोड़े कि जो अपने अपनी अपनी जगह बहुत कदावर थे, बहुत थे, और फिर उनके इख्तलाफात और फिर वो सारी ज़िंदगी जो तलखियाँ वो सारी गुजरी। क्योंकि ये जो तख्लीकी शोबे होते हैं इसमें अपने आप को बेहतर समझने का दखल बहुत ज़्यादा होता है, एक एहसास होता है कि मैं बेहतर हूँ, क्योंकि हर वक्त एक मुकाबले की फज़ा होती है और ये पॉजिटिव भी है, ये मुस्बत है। अगर आपके अंदर मुकाबले की ख्वाहिश नहीं है तो आप कोई बेहतर आर्ट तख्लीक नहीं कर सकते। ऐसी शायरा मतलब शरीक हयात एक ऐसी शायरा बन रही है कि जिसने, मैं नहीं समझता कि इशरत आफरीन की तरह की मकबूलियत उस अहद में किसी शायरा को संजीदा और जो जिसको कहना चाहिए कि मुस्तरद, मैं टीनेजर की मकबूलियत की बात नहीं कर रहा, ऐसी जिसके मद्दाहिन में कैफी आज़मी हों, जिसके को की शायरी को अली सरदार जाफरी सराह रहे हों, जिसकी शायरी के ऊपर एक ये नेम है ना, जो आते ही किसी शायरा ने ऐसा मकाम हासिल नहीं किया जैसे हमारी बजिया ने हासिल किया। हमारे ख्याल में इस तारुफ के बाद उस खाली कुर्सी को खाली नहीं बिल्कुल, रखना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारी इशरत आपा से कि तशरीफ लाएं। मैका तो ये एक बड़ा, अब यहाँ इंसान के अभी कुछ दिन पहले ही कहीं बात हो रही थी कि हम इंसानों के किरदार के ऊपर बात करते हैं, वो कहते नहीं साहब मेरे साथ तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया, मेरे साथ इन्हीं के घर की होती थी, तो परवेज भाई मौजूद थे, तो मैंने यही एक जुमला कहा था कि किरदार का अंदाज़ा वहाँ होता है कि जब उस किरदार को निभाने के लिए आपको अपनी शख्सियत को नफी करना पड़ जाए, वहाँ इंसान का किरदार जो है नजर आता है कि हाँ ये इंसान एक बड़ा किरदार रखता है। तो अब ये भी शायर, अच्छा ये शायर ऐसे शायर कि ये घर में बैठ के शेर कहती थी, ये जलसों में ट्रेड यूनियन में अपने शेर पढ़ा करते थे, मतलब इनका जो प्रैक्टिकल जो वो था ना, वो इनसे ज़्यादा कहीं बड़ा था इनका, और एक इनका मैदान भी बड़ा था, सियासत भी है उसमें, वकालत भी है उसमें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी है, तो ये एक बड़े पेडेस्टल से आ रहे थे। अब शादी के बाद उन्होंने देखा कि मैं आया तो बहुत बड़े पेडेस्टल से हूँ, लेकिन मेरे घर में जो शख्सियत मेरी शरीक हयात बन के आ रही है वो मुझसे कई गुना एक बड़ा एक शेरी मर्तबा रखती है जो तस्लीम किया जा चुका है। तो आहिस्ता 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 हमारे परवेज भाई ने अपने आप को बैकग्राउंड में करना शुरू किया, शेरी नहीं सुनाते थे पर समझा रहे हैं तो ये एक जो मुजाहरा है बुलंदी किरदार का, ये कोई आसान नहीं आपको माइनस करना, ये तो बहुत चलिए बड़ी कमाल की बात है। और इस प्रोग्राम का एक फ़ायदा ये हुआ कि परवेज भाई से गुफ्तगू रही और एक हमारा इनका जो एक्सचेंज है तो आज ही का है। एक मिसरा जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हमने फ़ोन किया था, उस मिसरे के सिलसिले में जो गुफ्तगू हुई उससे एक शेर और मिला हमें, जो कि अर्ली जो गैंग का जिक्र किया ना अब्दुल्ला भाई ने, तो ये शेर उस ज़माने का है। और अभी इजाज़त तो नहीं है लेकिन बहरहाल आप तक पहुंचा देते हैं कि अगरचे करती हैं रह रह के शोखियाँ हमसे,
अगरचे करती हैं रह रह के शौकियां हमसे, कहीं भी मिलती नहीं खुल के लड़कियां हमसे। तो ये मीर साहब का ये रंग भी आप तक आज हमें शर्फ है पहुंचाने का। और फिर इसी सिलसिले की जो गज़ल जो दूसरी थी उसका मतलब है कि न पूछ हिजरत शहर शगुफ्तगां हमसे, खफा थे पूत तो नाराज तितलियां हमसे। आप लोग दांत खोल के दे सकते हैं परवेज भाई। तो ये गजल सुनने को मिली आज इनकी खुद बैठे हुए हैं परवेज भाई, इन्हीं से सुनेंगे। और एक और गजल जो है जो कि कमाल की, बड़ी मुश्किल से निकलवाई भाई ये गजलें। मतलब हमने तो इनको ऐसी ऐसी जगह रिमाइंड कराया कि उस जगह रिमाइंड कराना भी नहीं चाहिए था। हम तदफीन के दौरान रिमाइंड करा रहे थे कि परवेज भाई वादा वफा कीजिएगा। अरे भाई कि उतरती है गली कूचों में शाम, आहिस्ता 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 हुआ करती है रस्तों में खराम, आहिस्ता आहिस्ता। इसका ये शेर देखें आप लोग कि चले अगले सफर में चैन से सोना ही सोना है। चलो चलो अगले सफर में चैन से सोना ही सोना है, यहाँ निकले चले आते हैं काम, आहिस्ता आहिस्ता। तो हम तो चाहेंगे कि गुफ्तगू का सिलसिला आगे चलेगा, लेकिन ये गजल परवेज भाई एक दफा अगर फिर वापस आएंगे कलाम की तरफ। अच्छा क्या कहते हैं, अभी सुना? बिल्कुल आप ये दो गजलें कमाल की गजलें, आप हो साथ बैठे हुए तो कोई दूसरा कैसे सुनाए। दोनों गजलें कमाल की हैं। पहला मतला इन्होंने जो पढ़ दिया वो वही समझ सकता है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की दीवारें अलीगढ़ जेल से ज्यादा ऊंची, जिला हाल वाली बैठी है वो बता सकते हैं। तो वो उस वक्त की बात थी। क्या ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं यहाँ से बहुत ही आहिस्ता है जी। हाँ बहुत ये हिजरत के बारे में नहीं आपकी जी वो भी सुनाएंगे जितना वक्त बच जाए, क्योंकि मगरिब का वक्त होने वाला है। उतरती है गली कूचों में शाम, आहिस्ता आहिस्ता हवा करती है रस्ते में खराम, आहिस्ता। ये बहुत पुरानी जमीन है, यानी वली दखनी से लेके जी जी और ज़ौक़ तक और अमीन मीनाई से लेके वालियासी तक सब ने इस ज़मीन में सरमत ने बहुत जी वो तो है कि अजब कुछ लुत्फ देता है शबे खिलवत में गुलरूं सूं, खिताब आहिस्ता आहिस्ता जवाब आहिस्ता। ये ओरिजिनल गदर है इसकी। और बहरहाल फिर बदल के काफ़ी लोगों ने कहे, कुछ हमने भी कहे थे कि उतरती है गली कूचों में शाम, आहिस्ता आहिस्ता हवा करती है गलियों में रस्तों में खराम, आहिस्ता आहिस्ता। और अकेला फूल टकराता है सर खाली दरीचों से, कोई करता है अव्वल शर कलाम, और कोई हरफे फना दीवारे जहाँ पर लिखता जाता है, कोई हरफे फना दीवारे जहाँ पर लिखता जाता है, निहायत राजदारी से मदाम। कोई हरफे फना दीवारे जहाँ पर लिखता जाता है, निहायत राजदारी से मदाम, आहिस्ता आहिस्ता। और चलो अगले सफर में
चैन से सोना ही चलो अगले सफर में चैन से सोना ही सोना है, यहाँ निकले चले आते हैं काम। यहाँ निकले चले आते हैं काम, आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत खुददार थे हम भी, मगर अब जिक्र क्या करना। बहुत खुददार थे हम भी, मगर अब जिक्र क्या करना। जकड़ते ही गए दाना दाना। बहुत खुददार थे हम भी, मगर अब जिक्र क्या करना। जकड़ते ही गए दाना दाम, आहिस्ता आहिस्ता। और ज़माना आखिरश अपनी डगर पर खींच ही लाया। ज़माना आखिरश अपनी डगर पर खींच ही लाया। किया है लिया है वक्त ने क्या इंतकाम। ज़माना आखिरश अपनी डगर पर खींच ही लाया। लिया है वक्त ने क्या इंतकाम। मुकर्रर करते हैं कि हम सबकी आप बीती जब सभी आए बहुत खुददार थे हम भी, मगर अब जिक्र क्या करना। जकड़ते ही गए दाना दाना, आहिस्ता आहिस्ता। और ज़माना आखिरश अपनी डगर पर खींच ही गया। किया है वक्त ने लिया है वक्त ने क्या इंतकाम। और इसमें एक लफ्ज़ आया है तख्ती, जो हमारे ज़माने में लिखना सिखाया जाता था। वो कागज़ पे नहीं, लकड़ी की तख्ती होती थी, और जिसको मुल्तानी मट्टी से लेपा जाता था, और फिर उस पर दोबारा लिखा जाता था। अब सुनिए ये शेर कि कटी है दिल सी तख्ती पोतने में उम्र जब जाकर। कटी है दिल सी तख्ती पोतने में उम्र तब जाकर, कहीं आया है लिखना एक। कटी है दिल सी तख्ती पोतने में उम्र तब जाकर, कहीं आया है लिखना एक। आहिस्ता हमारे इलियास बेग साहब आज यहाँ मौजूद हैं, और हमने इनसे कहा था कि परवेज़ भाई के लिए अगर कुछ कहना चाहें, और हमें बड़ी खुशी है कि आप तशरीफ़ लाए। हालांकि आपका प्रोग्राम है और वहाँ आपने कहा कि हम लेट पहुँचेंगे। प्लीज़। उन्होंने ये एहतमाम किया कि शायरों के साथ तो शाम मनाई जाती है। परवेज़ भाई की जो रिकग्निशन है, जो पहचान है, वो शायर से ज़्यादा एहतमाम करने वाले की और मुशायरा का एहतमाम करने वाली कि आपने उनके साथ शाम मनाने का एहतमाम किया। और थैंक यू फॉर रनिंग दैट वीडियो। इट टुक द थंडर आउट ऑफ माय स्टीम। That was not the intention. मगर एक बात उसमें अच्छी सामने आई कि अब्दुल्ला भाई ने कहा कि उन्होंने जब मुशायरे शुरू किए अलीगढ़ एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 1979 में, तो उनके साथ कोऑपरेशन शामिल था उर्दू मरकज़ का। और मुझे ये इफ्तिखार हासिल है, बीइंग वेरी हम्बल, कि मैं उर्दू मरकज़ का फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी रहा 1979 और 83 तक। मुशायरों में उनके साथ बहुत उस वक्त कोऑर्डिनेशन रहता था। दूसरी रिकग्निशन साद भाई ने की कि शाम और चाय का जो सिलसिला शुरू हुआ वो नैयर जहाँ नैयर लाइब्रेरी के दरवाजे से शुरू हुआ, मगर रफ्ता रफ्ता वो फेड आउट हो गया। उसकी वजह जो भी रही हो, वो नाम अब नज़र नहीं आता। जबकि मेरा ख्याल है कि वो ज़रूरी था कि हम जो एहसान नैयर जहाँ नैयर जो कि बानी थी और चेयरमैन थी उर्दू मरकज़ की, उन्होंने ह्यूस्टन वालों पे किया था, उसको करते उसमें कुछ मेरी भी कोताही शामिल है। जो गुफ्तगू कर चुके हैं आरिफ, उसके बाद मैं अपनी जो लिख के लाया हूँ उसको मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ। मगर जो चीज़ जिसके लिए मेरा ख्याल है कि इशारा करूँ ये कि मुशायरों के मोहतरम का मैंने इससे पहले सिर्फ
एक दफ़ा कहीं पढ़ा था कि कबीर अंसारी साहब होते थे जो उस वक्त उर्दू की जो ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान की, उसके चेयरमैन होते थे और वो मुशायरों का अहतमाम कराते थे। तो ढाका में जब एक मुशायरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा हबीब अंसारी साहब ने कि मुशायरा बहुत कामयाब रहा, वाह वाह भी हुई, शायरों ने दाद भी लूटी, लिफाफे भी लिए, सामईन को मज़ा भी आया, उन्होंने भी। बट व्हाट अबाउट हबीब अंसारी? तो ये जो है, दिस इज द आंसर टू व्हाट अबाउट हबीब अंसारी। परवेज साहब जो काम आपने किया उसके लिए, इससे पहले एक मेरी याददाश्त में है कि तकरीबन 3 दहाई कबल 1996 में सलीम जाफरी के लिए भी एक इंतज़ाम हुआ था और उसका नाम था जश्न सपास। जिन लोगों ने आपने देखे हैं दुबई के वो मुशायरे जो कि सलीम जाफरी के ज़माने में होते थे, तो उनको याद होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी के मुशायरे होते थे। मगर सलीम जाफरी के जश्न सपास हुआ था सिर्फ 10 मुशायरों के बाद। परवेज़ भाई के क्रेडिट में कम से कम 25 मुशायरे तो ह्यूस्टन में है, और उससे पहले कहाँ मुशायरे में। तो मुशायरों का एहतमाम जो है एक शीर लाने से कम नहीं है। स्पेशली 25 साल पहले जब, या 30 साल पहले जब आपने मुशायरों का इंतजाम शुरू किया था, उस वक्त ना तो मुशायरों में कोई माली फ़ायदा होता था और ना ही कोई ख़ास आपको शोहरत मिलती थी। ये एक पैशन था जिसके तहत लोग एहतमाम करते थे और मुशायरों का एहतमाम करते थे। और परवेज़ भाई ने उस पैशन में जो भी काम किया वो सबके सामने है कि इतने कामयाब मुशायरे कराए ह्यूस्टन में कि एक वक्त ये आ गया था जब हम लोग यहाँ ह्यूस्टन मूव हुए 2011-12 में कि एक महीने में 4-4 मुशायरे हो जाया करते थे। जो कोई मुशायरा नहीं करा पाता तो वो अपनी एक अंजुमन बना लेता था मुशायरे जिसको हम मुशायरे में नहीं बुलाते थे वो तो अब सवाल ये कि परवेज़ भाई का जो तस्करा हो रहा है वो मुहतमिन के तौर पे हो रहा है, शायर के तौर पे नहीं हो रहा। तो आज मैं परवेज़ भाई से सुबह बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि आप शायरी, आपके शायर मैंने कम सुने हैं तो मुझे कुछ भी तजुर्बा नहीं है। कहते जी मैंने शायरी 40 साल पहले छोड़ दी थी। और मैंने पूछा आपकी वजह क्या थी? तो वजह तो खैर कुछ बता दी, कुछ भी बताएंगे भी, मगर उसकी एक वजह ये भी है कि शादी 41 साल पहले हुई थी। मैं कट करते जा रहा हूँ कि अब्दुल्ला भाई कुछ बातें कर चुके हैं, कुछ आरिफ की कर चुके हैं, मगर जिस वक्त परवेज़ भाई की और जिस वक्त आप दोनों की शादी हुई है तो उस वक्त इशरत आपा का कद पहचाना जा चुका था कि जब उन्होंने कहा था कि मेरा कद मेरे बाप से ऊंचा निकला और मेरी माँ जीत गई। और ये दूसरा इनका बहुत मशहूर था कि बिन्ते फ्लास हूँ मैं तो मेरी माँ थी। कि ये किताब उनकी जब पब्लिश हो चुकी थी उस वक्त, मुझे याद है कि शादी से पहले कुछ पहले फूलों का पब्लिश हुई थी, शादी के बाद हुई थी, मगर उस मुकाम पर पहुंच गए थे। मेरे ख्याल से दोनों 1985 के वाक़यात थे। तो दो ही वजह हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि परवेज़ भाई ने कहा हो कि भाई एक नयाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती और एक बेडरूम में 2 शायर नहीं रह सकते, या दूसरी जो चचा जाफरी साहब की उन्होंने नसीहत पे अमल किया जो हमारे सामने मौजूद है। सवाल अब यह है कि क्या मुशायरों का इनेकाद उसी तरीके से होना चाहिए जो कि ट्रेडिशनल रहे हैं। मगर जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो शायरी जो थी वो ओरल शुरू हुई थी, टेक्स्ट फॉर्म बाद में आया था। पहले मुशायरों के ज़रिए लोगों तक पहुंचती थी। एक ज़रिया मुशायरे थे और दूसरा ज़रिया उस ज़माने की डोमियाँ थी। ये भी सुना है कि गज़ल कही जाती थी हैदराबाद दक्कन में और वो दूसरे दिन दिल्ली की डोमियाँ उसको गा रही होती थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ना उस वक्त टेलीग्राफ था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ये कैसे पहुंच जाती थी। मगर ये पढ़ा है मैंने कि हुआ करता था। तो अब हम
देख रहे हैं कि वापस जो दौर आ रहा है तो वो रिवर्स हो रहा है कि वो तहरीर से ज़्यादा अब विजुअल की तरफ या शेयरों की तरफ जा रही है, और उसको हम डिजिटल फॉर्म में देख रहे हैं, चाहे वो पॉडकास्ट की शक्ल में हो या वो इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो। जो शोहरत उन शोरा को मिल रही है जो कि टिकटॉक पे बहुत एक्टिव हैं, उन शोरा को मिल रही है जिनके क्लिप्स बहुत मशहूर हैं हमारे सामने। किस किस के मैं नाम लूँ, आप सब देखते ही रहते हैं उनको, चाहे वो जॉन हो। अभी मैं प्रवेश भाई से बात कर रहा था कि जॉन जो थे वो इंतकाल के बाद ज़्यादा पॉपुलर हुए इंडिया में, और उसकी वजह ये एक तो ये रही कि वो उनका कलाम जो था वो तर्जुमा होकर शायद एक वजह ये थी, और दूसरा वीडियो क्लिप्स जो थे। उसके बाद इंदौर भी हैं, हबीब जालिब हैं। अब नया दौर आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि गालिब भी आपको अपना कलाम सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, और मीर तकबीर भी अपना कलाम सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ये एक कमेंट है कि वो कलाम भी सुना रहे हैं जो उनका नहीं है। बहुत से अखबार और गालिब पैदा हो चुके हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। वो शेर बता देता कि उनका नहीं। तो हमें अब ये देखना है कि मुशायरों के एहतमाम का मकसद था शेर को सामीन तक पहुंचाना, तो क्या उस मीडियम को हमें चेंज करना पड़ेगा? क्या ये ज़रूरी है कि हम मुशायरे कराएं जिसमें कि हज़ार किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि खातून आ गई थी कि शैम्पू उनका पसंद का नहीं था। मैं इस किस्म के 500 वाक़यात गिनवा सकता हूँ जो कि मेरे साथ पेश आए थे इनमें। मगर क्या हम वीडियो क्लिप्स के ज़रिए, क्या इंस्टाग्राम के ज़रिए, क्या पॉडकास्ट के ज़रिए शेयरों को आगे तक पहुँचाएँ? तो ज़रूरत इस बात की है प्रवेश भाई के इन चीज़ों पे देखा गया कि जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से हम अच्छे शोरा के अच्छे कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सामने तक पहुँचाएँ। प्रवेश भाई के बारे में और भी कहना चाहता हूँ, ये बातें हो रही हैं तो मैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, जो कि आप लोग करते रहेंगे। मगर ये हकीकत है कि 25 मुशायरे करना सिर्फ ह्यूस्टन में, इसके अलावा इनकी मुशावरत से और मावनत से जो मुशायरे अमेरिका के दूसरे शहरों में या दुनिया के दूसरे शहरों में वो रहता है, he needs an standing ovation here. गायबाना रिकग्निशन, और कल रात तकरीबन 1:30 से हमें मैसेज मिला एक के साथ, आप एलीट पे एक बैग आपके लिए छोड़ दिया है, वहाँ से पिक कर लीजिए। और यही कर सकते थे। अब ये आपकी मोहब्बतें हैं, उनकी मोहब्बत जिन्होंने बैग छोड़ा और जो लेने गया, दोनों की मोहब्बतें जो हैं शामिल रहीं। अब ये ब्राउन बैग पिकअप पॉइंट जो है एलीट है, और तो ब्राउन बैग से निकाल के दूसरी उसमें किया। पहले उनका मैसेज सुन लीजिए और उसके बाद वो चीज़ पेश करेंगे आज परवेज भाई को। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आज परवेज जाफरी के एजाज़ पे नशिस्त मुनक्कद हो रही है। देर आए दुरुस्त आए। परवेज जाफरी के डीएनए में पोइट्री और ज़ुबान और उसकी ग्रामर, वो सारा कुछ इनके डीएनए में है। और ये उस्ताद शायर हैं। ह्यूस्टन के बहुत से शायर और शायरात जो अपने आप को समझते हैं कि हमें किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं और हम तो खुद उस्ताद हैं, वो परवेज जाफरी से शायरी सीख सकते हैं। शायरी के असरार और रमूज़ और शायरी के हासिल से सीख सकते हैं। इनका पता नहीं है इन लोगों को यहाँ जो रहते हैं कि शुतर गुरबा क्या होता है, ऐब इतराफ़र क्या होता है, या सनतें कितनी हैं और कौन कौन सी है, और कलाम में खूबी कैसे पैदा की जाती है, मिसरे की बंदिश कैसे की जाती है। ये सारी बातें बहुत से शोरा और शायरात यहाँ ह्यूस्टन के परवेज जाफरी से सीख सकते हैं। और नज़ामत तो ये इतनी अच्छी करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में इनसे बेहतर
अफजाल फिरदौस, रेवरेंड डॉक्टर अफजाल फिरदौस के लिए भी तालियां। तबीयत बहुत ख़राब है उनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। मैं चाहूँगा साहिब भाई कि आप तशरीफ़ लाएँ। और ये 2 तहाइफ इसमें मौजूद हैं और इसका जिक्र जो है वो भी एक मजहबी महफिल में हमारे इलियास भाई ये भी एक थैला ले आए थे, क्योंकि पिछली महफिल में आपने जिक्र किया था कि कुल्लियात मेरे पास नहीं है और तुमने किसी और को दे दी। तो वो जो पूरा मुकादमा था वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, तो हमने इनसे कहा कि नहीं आप इलियास भाई ये आप ले जाइए। साथ में ये बातचीत हो गई है, इंतज़ाम हो गया है। तो भाई इसकी आप रहनुमाई की जो उन्होंने एक नहीं, इसके में एक बहुत अहम चीज़ भी शामिल है। जी मेरा ये मकाम नहीं है। डॉक्टर खालिद रिजवी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो किताब शामिल रही इस प्रोग्राम में और चाय मिलेगी, उम्मीद है। ये उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि भाई परवेज़ भाई को ये आप बताइए कि ये लिखाएं तो मैं खास अमन हो, जिसकी कि बड़ी शदीद ज़रूरत है। अमन हो। डॉक्टर फातिमा हसन जब आई हुई थी तो एक महफिल हुई परवेज़ भाई शदाफा और डॉक्टर फातिमा हसन के साथ हमारी अम्मी की चौकी पे, और वहाँ पर मालूम हुआ कि वो शामिल थी आप लोगों के निकाह में। उनके मियाँ गवाह भी थे। जी तो अब आप दोनों जरा थोड़े सा ये थोड़ा दिन तारीख भी बताइए, उसमें कौन कौन शामिल था। अच्छा उसकी तफसील भी बता जी बताइए। चलिए तो आप ही बता दीजिए। भाई आपके शहर के लोग थे तो कौन कौन थे? हम तो जो है बाहर से आए हुए थे। आप तो जब आ गए आप तो डेरा डाल के बैठ गए थे। तो बैठ गए ये आया तो 1981 में थे पहली बार कराची। इसके वाहिद गवाह जो है नहीं, उस वक्त हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा कि तुमने तो बहुत देर से शुरू की शायरी। मैंने कहा कि नहीं मैं 81 में मैं पढ़ने लगी थी, शुरू कर दिया था। तो कहने लगे लेकिन जहाँ जहाँ मैं गया, ये आए थे कौन सा मुशायरा था? नशतर पार्क का मेयर थे और ये और अकील अब्बास जाफरी जो है, ये लोग लिए साथ घूम रहे थे। मतलब ये कि वो ज़माना था। तो मतलब हमारे भाई आरिफ इमाम, उनकी एक छोटी सी बाइक थी जो उन्होंने नीलाम घर में जीती थी। उसके पे सवार होके हमने कराची पूरा तो हमारी मुलाकात जो है वो 85-84 में हुई और फिर 85 में हमारी शादी हुई। लेकिन जैसे मेरी किताब के बारे में पूछा गया था, तो किताब तो 4-5 साल का ज़ख़ीरा था। ज़ाहिर है वो पहले में छप रही थी रिसालों में। पहले ये होता था, देखिए कि किताब आती थी, फिर रिसालों में छपते थे, फिर किताब आती थी। तो अदबी मैगज़ीन में तो उससे एक मेयार बनता था, एक मकाम बनता था, लोग मानते थे या अपने रिजेक्ट कर देते थे, वो होता था हिसाब। तो हमारी इस तरह से किताब तो आई 85 में शादी के बाद, लेकिन वो कंपाइल हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था शादी से पहले। तो इस तरह ये 2 सूरतें हैं। शादी भी 85 में हुई, जनवरी 85 में, किताब आई है उसी अरसे में। तो और वहाँ पे शादी में कौन कौन शरीक था? शादी में देखिए जॉन एलिया साहब थे, ज़ाहिदा हिना थी, जमीलुद्दीन आली थे, और कोई ऐसा शहर का एलीट शायर नहीं था जो कि शरीक ना हो उसमें। तो जॉन भाई ने रुखसती के वक्त ये जुमला कहा कि हाय बाली काश के मैं इशरत आफरीन होता और कोई परवेज़ जाफरी बेहाक
खुशकिस्मती है मेरी कि परवीन शाकिर थी उसको परवीन मेरी शादी थी, शाहिदा हसन, फातिमा हसन, हाजरा मसरूर, बेगम नूरानी, मुमताज़ नूरानी, मकतबा दानियाल की, हूरी की वालदा, और आली साहब की बेगम, हाँ मुंसिफ रजा साहब, वो तो गवाहों में थे। जी हाँ बिल्कुल। तो काफ़ी उस वक्त का कराची बड़ा हरा भरा था और बहुत लहराता हुआ था। अब इनसे पूछिए, बाकी मैंने तो ये मुझे जो याद था। अब मैं क्या बताऊँ? अली सरदार जाफरी साहब से पहली मुलाकात आपकी होने वाली जो दुल्हन की कब हुई थी? साहब ऐसा है कि जब मैं 81 में मुशायरों में आया था कराची होशंगाबाद में पहली बार, 3 हफ्ते तक तकरीबन रोज मुशायरे हुए, 3 हफ्ते तक वहाँ पे। और जिसे कराची में मुशायरा कहा जाता था, वो एक साहिब सरबत लोग अपने घर पे 100, 150, 200 लोगों की दावत किया करते थे और उसमें शेर सुनाने होते थे। और बड़े मुशायरे जो होते थे वो जिसमें हम आए थे नश्तर पार्क के मुशायरे, और उसके बाद जो है अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन का और उसका आर्ट्स काउंसिल का बहुत सारे मुशायरे होते थे वीकेंड पे, और वीक डेज में वो चलता रहता था। तो एक तो ये होता रहा, और इतने पैसे मिले जो हमें कभी नहीं मिले थे। यानी जेब में पाकिस्तान के नोट, हमें चूरन के नोट मालूम होते थे कि जो जाता था वो इधर से डाल जाता था, उधर से डाल जाता। तो वो 3 हफ्ते चलते रहे। 3 हफ्ते में थक गया। मैंने कहा अच्छा ऐलान कर देते हैं कि वापस जा रहा हूँ। और ज़ाहिर है बहुत सीनियर शोरा मेरे साथ थे, यानी मैं उनके साथ था। मैं बोल रहा हूँ फना निज़ामी कानपुरी, डॉक्टर करीमा जिस, अपने जो है वो हफीज़ मेरठी से, जगन्नाथ आज़ाद साहब, ये पूरा बुजुर्गों का की टीम थी। हफीज़ जालंधरी तो खैर हिंदुस्तान से नहीं आए, वो तो उस पहले मुशायरे की सदारत कर रहे थे जो नश्तर पार्क में हुआ था, और जहाँ मैंने अपनी गज़ल और अपनी नज़्म पढ़ी, और उन्होंने उठ के मुझे गले लगाया और कहा कि भाई मुझे खुशी हुई कि सरदार जाफरी की नस्ल आगे बढ़ रही है। और उसके बाद उनकी बैग में उनके जितने मजमूए थे 3, वो सब उन्होंने वहीं बैठ के लिख के और इनाम के तौर पर मुझे दे दिए, जो ज़ाहिर है मेरे लिए बड़ा सरमाया है। मेरे पास से तीनों मजमूए उनके मौजूद हैं हफीज़ जालंधरी साहब के दस्तखत के साथ। और क्या, फिर मैं वहाँ से मुशायरों से भागा, और मेरे और दमादम बस कलंदर करने से बच सके। मेरे एक मामू थे, उन्होंने कभी मुझे वहाँ जाना है तो फिर वो वहाँ चले गए। और मैंने कुछ और कहा? अच्छा 7। हाँ बात तो जो जैसा, अच्छा ठीक है। तो बहरहाल वो मेरा 1 महीने का दौरा था। इनसे मेरी वहाँ कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ये घर से इजाज़त लेके आती थी और बच्चों में पढ़ के चली जाती थी। और हम अपना मेहमान शायर थे, तो जब तक हम स्टेज पे आते थे तब तक चली जा चुकी होती। सो बहरहाल हमारी इनकी मुलाकात कभी नहीं हुई, किसी मुशायरे में नहीं हुई। अक्सर लोग लिख देते हैं मुशायरे में, किसी मुशायरे में नहीं हुई। 84 में हमारे चचा अली सरदार जाफरी साहब पाकिस्तान गए हुए थे, और वहाँ पे उनसे फरमाइश की गई हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान टाइम्स वालों ने और पंजाब एसोसिएशन वालों ने, कि जनाब आप
पाकिस्तान से किसी शायर या शायरा को लेके आइए, लेकिन वो हमारे वाले नहीं होने चाहिए। हमारे वाले से मुराद ये कि जो लोग हिंदुस्तान से गए हैं उनमें का वो तो हमें मालूम है, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो चाहिए, हाँ मुख्तलिफ लहजा चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने सिफ्त हसन साहब जो उनके दोस्त थे और जो उनके बहुत दूसरे लोग थे, और इन्हें भी उन्होंने सुना मुख्तलिफ उसमें, तो उन्होंने इनको मदरू किया। इन्होंने कहा हमारी अम्मा तो जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा चलो वो काम मैं कर लूँगा। तो इनकी अम्मा से बहरहाल उन्होंने कहा और उनको गारंटी दी कि भाई ये जाएंगी, हमारे घर रहेंगी और खैरियत से वापस आ जाएंगे। तो बहरहाल ये इस तरह ये बम्बई आई। मैं उस वक्त बहुत संजीदगी से वकालत में मुब्तला हो चुका था, और मैंने वादा किया था वहाँ लोगों से कि मैं 1 साल तक नहीं जाऊँगा शहर से बाहर के। तो मैं उन मुशायरों में नहीं था जो मुंबई में हुए और दिल्ली में हुए। तो इनकी मुलाकात मुझसे मेरे शहर बलरामपुर, यानी जहाँ चचा ने कहा कि तुम जाना हमारा घर देख के आना, और हमारे भतीजा वहाँ है, उससे मुलाकात की। तो बहरहाल ये इनकी एक खाला वहाँ पे थी, इनके यहाँ ये बलरामपुर आई और वहाँ इनकी मुलाकात हुई। फिर वो मुलाकात तवील होती चली गई, बलरामपुर से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई। तो वहाँ मेरे चचा ने कहा कि भाई मैं वादा करके लाया हूँ इनकी माँ से, तो ये वापस जाएंगी, और उसके बाद हम लोग, मैं एक रुका लिख दूंगा इनकी वादा को, और मुझे उम्मीद है कि वो उसे कबूल कर लेंगे। फिर हम लोग चल के कराची से ले आएंगे इनको। तो वो 84 दिन फिर तय हुआ कि नवंबर में उनका अमेरिका और कनाडा का दौरा था, सब उन्होंने कहा वहाँ से पहुँच जाएंगे, और वो नवंबर में जनाब इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, और उसके बाद सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई। और जैसा अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि वहाँ भी सियासत शायद ज़्यादा करते थे, तो मैं अपनी शादी में जाना भूल गया। हमारी चची सुल्ताना जाफरी साहिबा ने कराची पहुंच के कहा भाई दूल्हा कहाँ गायब है, हम तो पहुंच गए। तो खैर मैं कहीं इलेक्शन में फिर रहा था, जब लौट के आया तो मुझे पता लगा कि भाई वो वहाँ पहुंची हुई है, तुम कहाँ गायब हो। तो खैर हमने कहा चाबी रवाना हो जाती। तो इस तरह हमारी नवंबर 84 के बजाय जनवरी 85 निकाह हुआ कराची। और उसके बाद मैंने इनसे ये कहा कि देखो जाने से पहले ये अपनी किताब छपवा के जाओ, वरना लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, लोग भूल भाल जाएंगे। और जो पैसे रखे हुए हैं हनीमून के लिए जाने को, हनीमून कहीं और कर लेंगे, या किताब छपवाए, यही हनीमून है। तो इनका कातिब जो है वो, इन्हें कहा हमने किया तो है लेकिन वो सब पड़ा हुआ है, तो कातिब हम पता लगा के कहा था पता नहीं कोरंगी वगैरह में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो काम मुझे आता है। मैंने एक टैक्सी ली, कोरंगी गया, उनसे मिला, उनको एक मोटी रकम उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे उसी टैक्सी पे कहा, मैंने कहा भाई घर के लिए सब अपना गल्ला पानी ला के बीवी को दे जाओ और चलो मेरे साथ। तो बीवी उनकी घबरा गई कि एमक्यूएम वाले तो नहीं है, उठा के कहा दिया था, और वो पजामा कुर्ता पहने भी हुआ था। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं कोई मसला नहीं है, मुझे एक काम पूरा कराना है और इसलिए
तो बहरहाल वो इस तरह वो किताब पूरी हो गई। उसकी किताबत होनी थी, दानियाल साहब से अपने मलिक नूरानी साहब को उसको शाया करना था, लेकिन उन्होंने कहा मैं शाया तो इस वक्त को ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरा टाइम स्केड्यूल होता है, उस हिसाब से कर पाऊँगा। मैंने कहा साहब मुझे वापस जाना है, मेरी वकालत चौपट हुई जा रही है, मेरा क्या सारा। तो ये तारीख पहले जो ये कह रहे हैं कि आप तो डेरा जमा के बैठ गए थे, तो वो सही कह रहे हैं। तो वो तारीख 8 काउंसिल में तय हो गई कि 27 तारीख को इसका इफ्तिताह होना है, और बहरहाल वो किताब बहुत उम्दा छप के वहाँ हो गई, और उसमें भी शहर के सारे अहम लोग आए थे। किसी ने लिखा के साथ रईस अंसारी और वो रईस अमरोही और जॉन एलिया और सैयद मोहम्मद तकी, और उन्होंने कहा चारों भाई तो एक साथ कभी देखे ही नहीं गए जो इस महफिल में बैठे हुए थे। तो बहरहाल उनकी मोहब्बत सामने आए थे, और उसके बाद हिंदुस्तान में रवाना हो गए। परवेज भाई जी शेरी सफर की तरफ आते हैं। हमारे शेरी जी अच्छा अरे शेरी सफर रुकने का तो हमें पता लग गया, शुरू कैसे हुआ? भाई सिलसिला यह है कि हम अलीगढ़ पहुंच गए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाहिर है वहाँ असातिज़ा में भी एक से एक बड़ा शायर उस वक्त मौजूद था, और जैसा कि अब्दुल्ला भाई ने भी जिक्र किया कि एक गैंग इन लोगों का जमा हो गया था, तो तलबा में भी शायर और अदीब खासे जमा हो गए थे। तो उस माहौल में अगर रहना था तो शेर तो कहना था, तो वहाँ से शेरी उसकी इब्तिदा हुई, और वहीं से शुरू कर देते हैं, आपको सुनाते हैं। वहाँ पे एक स्ट्रेची हॉल है जो सर सैयद बाबा बनवा गए थे, और वहाँ पे तरही मुशायरे होते के तरह दी जाती थी, और उसमें स्टूडेंट्स जो और असातिज़ा वहाँ बैठे हुए थे, जजेस। तो मिसरा दिया गया था कि कत्ल होने के लिए खुद मिल गया कातिल, कत्ल होने के लिए खुद मिल गया कातिल मिल गया। आप समझते 71-72 का जमाना था इसका मतलब। सो मैं नया गया था, कोई किसी को जानता नहीं था, तो मैंने भी कुछ शेर 4-5 लिखे और जाके वहाँ अपना नाम लिखवा दिया। तो वो गजल सामने जजेस बैठे हुए थे, उसमें प्रोफेसर वहीद अख्तर थे और डॉक्टर बशीर बद्र थे और शहरियार साहब थे। ये 3 जजेस सामने बैठे और उनके सामने शेर पढ़ने थे। तो तमाम तलबा जमा थे, तो शेर पढ़ा। वो उसी गजल से शुरू करता कि आप ना अपने कारवां में कीजिए शामिल, कि अब ना अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, देखना है कब तलक मिलती नहीं मंजिल। अब ना अपने कारवां में कीजिए शामिल मुझे, देखना है कब तलक मिलती नहीं मंजिल मुझे। और मैं बफैज़े मौजे तूफान हूँ तो साहिल पर मगर, मैं बफैज़े मौजे तूफान हूँ तो साहिल पर मगर, डर है लेकर बैठ जाए अब मैं ये साहिल मुझे। मैं बफैज़े मौजे तूफान हूँ तो साहिल पर मगर, डर है लेकर बैठ जाए अब न ये साहिल मुझे। और फिर तबीयत झूम उठी, फिर गजल होने लगी, फिर किसी की याद ने समझा किसी कातिल। फिर तबीयत झूम उठी, फिर गजल होने लगी,
समझा किसी काबिल मुझे और एक मंजिल दूसरी मंजिल का देती है पता। एक मंजिल दूसरी मंजिल का देती है पता, अपनी मंजिल पर पहुंचना अब नहीं मुश्किल। मंजिल पर पहुंचना अब नहीं मुश्किल मुझे, और देखिए क्या बीत जाए दीदो दिल दे गए, दैरो काबा से बहुत आगे कई मंजिल मुझे। एक शेर याद आ रहे हैं, तो इस पे मुझे पहला इनाम वहाँ पे मिला इन असातिज़ा ने, और इस तरह मेरी इंट्री और रिकग्निशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ी मुश्किल जगह है, वहाँ किसी शायर वायर को कोई गिनता नहीं, जहाँ पे एक से एक लोग बैठे हुए हों। तो बहरहाल इससे इब्तिदा हुई, और फिर वो जो हमारा हल्का वहाँ जमा हो गया था, अशोका चंगेजी, फरहत एहसास, क्या नाम है, आपके उस वक्त के साथियों में से उस कंपटीशन में शामिल थे, जिसमें इनके साथ है जिसमें इन्हें पहला इनाम मिला। जी अब तो वो दावा करते हैं कि वो सबसे बड़े शायर। अब वो बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हिंदुस्तान में वो सबसे अच्छा शायर है। और क्या हो गया, इनकी आवाज पहुंच जाएगी। अच्छा, हाँ, तो वो तो आवाज़ तो पहुँच जाएगी। हाँ, उसमें फरहत एहसास को दूसरा इनाम मिला, और उसके बाद उन्होंने झगड़ा भी किया, वो हमसे सीनियर थे जी, यानी हम, तो शहरियार साहब ने खड़े होकर उसकी वजाहत की, क्यों? भाई क्या क्योंकि उन्होंने शेर पढ़े और पहले तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया, अंतरा नहीं उठा, तो उन्होंने तहत में पढ़ना शुरू किया। किसने? फरहत में। अच्छा, हम अपना आए, और हम हमेशा के बेसुरे थे, ये हमें मालूम था, तो हम तो तहत में पढ़ते थे, हमें तहत में ज़्यादा कॉन्फिडेंस। और जब वो यहाँ आए थे ह्यूस्टन, तो सलीम सैयद ने यंग टाइम पर भी उनसे पूछा, हाँ, तो क्या आपको याद है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है, अच्छी तरह याद है। बहरहाल आज सबसे बड़ा शायर है जी हाँ, बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं। और अभी उसकी कुलियात आई है, हाँ, और उसको बहुत अच्छे कदरदान भी मिले। मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा एक 5 स्टार होटल में रेख्ता वालों ने जी उनके लिए प्रोग्राम किया, और वहाँ पे जो है डिनर खिलाया लोगों को, और वहाँ उनकी किताब रिलीज हुई। तो हमारा जब का यार है, आपका भी यार है। देखिए, ये मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा एजाज़ है कि आप पहली मरतबा एक ऐसे तालीमी इदारे में कि जिसका नज़्म ज़ब्त जो हर मामले में एक मुकम्मल दस्गाह की हैसियत रखता था, वहाँ से आप अपनी शायरी का आगाज़ कर रहे हैं, पहली गज़ल पढ़ रहे हैं, और उस पर शहरयार जैसा मतलब लिविंग लेजेंड खड़े होकर आपको पहला उसका वो दे रहा है, तो ये ही ज़िंदगी के लिए काफ़ी होता है कि इतना बड़ा है। तो उसमें ये तो हो गया अलीगढ़, फिर बलरामपुर का भी किस्सा जोड़ दें। अली सरदार जाफरी साहब हमारे चचा बम्बई में रहते थे, हम लोग बलरामपुर में रहते थे, कोई 2000 मील का फासला। तो कभी कभार वो आते थे बलरामपुर, तो वो बलरामपुर आ गए। तो वो याद है कि हमारी कोठी के दाम में टेनिस कोर्ट में वो मूंगफलियाँ खाते हुए टहल रहे थे। मैंने मौका गनीमत जाना, और मैंने जाके उन्हें इत्तला दी कि जी मैंने गज़ल कही है, और ये वहाँ पे मुझे इनाम मिला। कहने लगे अच्छा सुनाओ। तो मैंने ये सारे शेर सुना दी। कहने लगे मस्तानी का, हमने कहा चचा जान वो आ नहीं रहा था। कहने लगे कि दरमियान में आ जाएगा, शुरू में या नहीं आएगा।
जिंदगी परवेज है हर लहजा ताज़ा हादसा, और शोरिश जिंदगी परवेज है हर लहजा ताज़ा हादसा, शोरिश तूफान में है आसाइश साहिब। और इस तरह उस सदन में मख्ता हो गया। हमने उनकी दुआएं समझ के उसको अपने शामिल किया और पढ़ भी देते हैं, लेकिन आज सुनाना बताना जरूरी था। तो और फिर उसके आगे बढ़े। ये आफताब है, ये हमारा जिसका भी अब्दुल्ला भाई जिक्र कर रहे थे। तो ये हमने इसके हम एडिटर थे और ख़ास नंबर हमने तरतीब कर दिया था कि जी अलीगढ़ के हम असर अलीगढ़, और उसमें अलीगढ़ को आज़ादी के बाद से शुरू किया था कि 47 से 77 तक के सालों में जो शायर और अदीब अलीगढ़ से बहैसियत उस्ताद या बस बहैसियत तालिबा मुंसलिक रहे हैं और जिन्होंने वो चीज़ें जो उसी दौरान कही उनको यकजा करके और एक खुसूसी शुमारा निकाला जाएगा। और इस पर मैंने काम शुरू भी कर दिया था। 30 साल का वो जमा किया था, मगर इतने पैसे नहीं थे फंड में कि 30 साल का, तो फिर इसको 10 साल छोड़ के इसको 57 से 77 तक के 20 साल का ये वो कलाम है तमाम शोधा का। और इसको अब रेफरेंस बुक समझा जाता है और वहाँ की लाइब्रेरियों में इसको महफूज किया जाता है कि ये अलीगढ़ का ऑथेंटिक वो है कि वो शायर और अदीब जो उस वक्त थे और जो वहाँ मौजूद थे वो तो थे, जो नहीं थे उनके सिलसिले में प्रोफेसर खलील रहमान आज़मी साहब, उस ज़माने में उनको ब्लड कैंसर हो चुका था और अस्पताल से आके घर पे अपने लेटे होते थे और मैं वहाँ पहुँच जाता था। याददाश्त उस वक्त उनकी इतनी अच्छी थी कि शायरों के नाम और पते उन्हें ज़बानी याद थे जो मुझे बताते जाते थे और मैं लिखता जाता था कि जो लोग पहले चले गए मुझसे पहले, तो उनकी चीज़ें भी जमा की। भाई आरिफ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनकी बेटी की आज सालगिरह है और सब बच्चे वहाँ पे जमा हैं और हमारी मोहब्बत में ये यहाँ आ गए हैं। अरे भाई बहुत शुक्रिया, बहुत कह नहीं सका मैं। ये एक बात और बहुत खुलूस दिल के साथ और बड़ी खुलूस नीयत के साथ सिराज का और अनिल भाई का शुक्रगुजार कि उन्होंने, देखें लोग चले जाते हैं उसके बाद लोग याद करते हैं उनको, अपने शहर में मौजूद लोगों का उनकी ज़िंदगी में एहतराम इतना बड़ा दर है जिसको हम अदा करना हमेशा भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग घर में अदा करने के आते हैं। तो ये जो आप लोग जो काम कर रहे हैं ये इसके लिए हैट्स ऑफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। अरे भाई बहुत शुक्रिया। शहरयार साहब का जिक्र हो रहा है तो उनकी ज़मीन में मैंने गज़ल कही थी। उनका ज़मीन थी कि कागज़ की कश्ती पे दरिया पार किया, कागज़ की कश्ती पे दरिया पार किया, देखो हमको क्या क्या करतब आते हैं। तो उसी बहर और ज़मीन में काफिया बदल के उस वक्त मैंने गज़ल कही थी जो इसमें छपी हुई है। तो ऐसे दर्द के लम्हे कम कम आते हैं, ऐसे दर्द के लम्हे कम कम आते हैं, मौसम खुश्क मंजर भी नम आते हैं। और खुशखबरी ऐ खुश्क लबा है खुशखबरी, खुशखबरी है खुश्क लबा है खुशखबरी, प्यास बुझाने कतरे शबनम आते हैं। और दोहराएगी आज अपने को तारीख,
दोहराएगी आज अपने को फिर तारीख, मेरे लब तक फिर जाने समा। और अब गिरे कब बर्फ गिरे कब बरसे धूप, अब गिरे कब बर्फ गिरे कब बरसे धूप, बेसोचे समझे अब मौसम आते हैं। और दश्त में रहकर दश्त की जब होती है तलब, वहशत में ऐसे भी आलम आते हैं। क्या कहें परवेज भाई? कहने फराज़े दारो रसम से अब कोई, वहशत में ऐसे भी आलम आते हैं। और कहने फराज़े दारो रसम से अब कोई, बहरे इस्तक़बाल उठे हम आते हैं। क्या ज़ीनत बज़ में अदल है खाका लूदा लोग, सर को झुकाए परवेज़ो जम आते हैं। ऐसे दर्द के लम्हे कम कम आते हैं। जी फरमाइए। एक अच्छा सवाल नहीं, गजल सुन। ठीक, अच्छा तो गजल तो मैंने ये सुना दिया आपको। इसमें हाँ है तो बहुत सारी। एक नज़म छपी हुई है जो उस नौजवान शायर की है जो इन सफ़ेद बालों के साथ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मगर मैंने देखा कि हमारे भाई अमजद इस्लाम अमजद साहब, उनके सर पे बाल हमसे भी कम थे और वो रोमांटिक ऐसी नज़में पढ़ा करते थे और लोग पसंद किया करते थे। तो अब और तो सब कहा गया, इसमें छपी हुई है, इसका अनुमान है वो ये होना चाहिए बराबर में बैठिए। नहीं ये नहीं थी, ये कहाँ थी इनके लिए दूसरी। वो अजीब लड़की है, जाने क्या समझती है, मेरा उसका रिश्ता क्या, फिर भी राह तकती है। उस गली से होकर मैं जिस घड़ी गुजरता हूँ, नीम व दरीचे से चांद एक उभरता है। चांदनी की उंगली में सब्ज रेशमी पर्दा होले होले हिलता है। सुरमई सलोनी शाम साये सनोबर में थक के बैठ जाती है। गहरी गहरी दो झीलें ख्वाब गूंद दुल्हकों में डूबती उभरती हैं। फूल खिलने लगते हैं, रंग रक्स करते हैं, मैं बरसने लगती है, कहकशा उतरती है। वो अजीब लड़की है। अब चाहे जो भी हो मौसम, चाहे सुबह हो या शाम, जैसे उसको हो मालूम मैं कब आने वाला हूँ। छोड़कर वो घर के काम दौड़ी दौड़ी आती है और उसी दरीचे से राह तकने लगती है। मुंह से कुछ नहीं कहती, आंखें बांध करती है, कुछ सवाल करती है, कुछ जवाब देती है, गाहे रुक जाती है, गाहे खुद मनाती है। इंतजार के किस्से शिकवे और गिले कितने दूर से सुनाती है। सांस तेज होती है, पाँव जमने लगते हैं, राह भूल जाता हूँ, बर्फ गिरने लगती है। वो अजीब लड़की है। क्या बहुत अच्छी। और उससे मैं कहूँ कैसे, कोई और समझा दे मेरा उसका रिश्ता क्या। वो अजीब सी लड़की इंतजार में मेरे, उम्र क्यों दिए जलाती है, उम्र क्यों गवाती है। वो अजीब सी लड़की जाने क्या समझती है। क्या अरे क्या थोड़ा सा आप सबसे मौका मिले तो एक प्रोग्राम हुआ था और बड़ी खुशनसीबी हमारी है इन दोनों की वजह से कि हमने अली सरदार जाफरी साहब को सामने बैठ के सुना। और ये इस कदर स्ट्रॉन्ग डीएनए है खानवादे का। इस वक्त जब ये नज्म पढ़ रहे थे तो हमें उनकी आवाज़ याद आ रही थी। सुनिएगा नज्म अली सरदार जाफरी साहब से, यूट्यूब पे वो प्रोग्राम मौजूद है और हमें लगा कि ये नज्म वही पढ़ रहे हैं इस वक्त।
वही लहजा है। मैंने प्रयास किया ना कि डीएनए इस कदर है, देखिए असल में आवाज बिल्कुल वही होती है। खानदान की जी 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 बिल्कुल। लहजा होता है। You are a poet in your own right. और ये तो एक कुदरत की अता है। तो अपनी ज़ाती तख्लीकी सलाहियत को साइड पर रखना और बिल्कुल तकरीबन तर्क कर देना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। आपने ये कैसे मैनेज किया? भाई सौदा महंगा नहीं था। मैंने शायरी छोड़ के सारा ले लिया। बाद में क्या कहा बताइए। भाई ऐसा हुआ कि जब चचा से मैंने बम्बई जाके अर्ज की कि ये इरादे हैं हम लोगों के, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा इनको वापस जाना है क्योंकि मैं वादा करके आया हूँ और मैं वो रफ्ता लिख दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम दोनों से अलग अलग बात करता। मैंने कहा बेहतर है। तो इनसे क्या बात की है मैंने आज तक 40 साल में नहीं पूछा, पूछना भी नहीं चाहिए, वो उनसे बात करना चाहते थे। मुझसे जो बात की तो उन्होंने ले गए मुझको कहीं और मुझे किस्से सुनाए उन्होंने कि देखो मैं 50 बरस से यहाँ देख रहा हूँ, इस्मत चुगताई और शाहिद लतीफ़ से लेके नरगिस और सुनील दत्त और अमिताभ बच्चन और जया और वगैरह वगैरह, कहने लगे ये मर्द की एक खासियत है कि वो औरत को दबाता है और ख़ासकर अपनी बीवी को। और इशरत बहुत अच्छी शायरा है, मैं ये नहीं चाहता कि वो ज़ाया हो जाए। और शेर तुम भी कहते हो? मैं कहा जी। कहने लगे तुम में से कौन अच्छा है? मैंने कहा नहीं, शायरा तो वही अच्छी है। कहने लगे फिर एक घर में दो कैसे रहेंगे? फर्ज कर लो किसी ने मुशायरे में उसको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया, या वहां दोनों को बुलाया, उसे ज्यादा दाद मिली, तुम्हें नहीं मिली, फिर ये आपस में झगड़े की इब्तिदा होगी। और फिर ये कि मैं ये नहीं चाहता कि इशरत जैसी शायरा ज़ाया हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है चिता, मैं शायरी छोड़ दूँ। कि छुट्टी नहीं है मुझसे, ये काफिर लगी छुट्टी। मैंने कहा कि हाँ वो है, मगर मुझे और कई काम आते हैं, शायरी उनके लिए छोड़ दूंगा। सो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने रुका लिख दिया, उनकी अम्मा ने मंजूर कर लिया और फिर हम लोग जाके कराची से निकाह करके मुंबई ले आए। शायरी छोड़कर शायरा को अपना लिया। जो आप कह रहे थे कि क्या हुआ, मैंने कहा सोचा महंगा नहीं था, शायरी छोड़ के शायरा ले आए और अपने से अच्छी लिया। कमाल का जज्बा है, कमाल का जज्बा। इस पर आपको आफरीन। तो जितना भी कलाम आपने लिखा उसको किताबी सूरत में कभी छुपाया या? बात यह है कि अलीगढ़ में जो शेर कहते थे वो इसी पर्चे पे लिख देते थे, और हाफजा उस वक्त इतना अच्छा था कि मेरा दावा था कि मुझे 1 लाख शेर ज़बानी याद है। वो 1 लाख। और वेदबाजी का मुकाबला होता था, उमन 4-5
लड़कों की टीम होती थी। मैं अपने आफ्ताब हाल की तरफ से अकेला जाके बैठता और कभी कोई मुझे बात नहीं दे सका। तो उस वक्त ये जरूर था कि भाई दूसरों के इतने शेर याद हैं तो अपने शेर क्यों नहीं याद होते। तो जैसा मैंने कहा, कराची में 20-21 दिन मैंने मुशायरे पढ़े, कभी कोई पर्चा नहीं था, कभी कोई वो नहीं था, सब जबानी याद था। तो उस गुमान में कभी जो है किसी डायरी पे नहीं लिखा, कभी वो नहीं हुआ और हमेशा याद रहा, पढ़ते रहे। और फिर जब 84 में चचा से वादा कर लिया तो फिर और आगे का सवाल ही नहीं था, वादा पक्का था। लिहाजा जो है वो जो पर्चे सच्चे जहाँ पड़े थे वहीं पड़े रह गए और हिजरतें होती रहीं, अलीगढ़ से लखनऊ, लखनऊ से बलरामपुर, बलरामपुर से ह्यूस्टन, तो जाने कहाँ गए। तो हमारे भाई अदील ने और आपने जिद करके हमको इन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर तो शहर आपके पास हो। तो फिर इन दिनों मैंने याद कर करके, एक तो ये रिसाला मिल गया, इसमें कुछ चीज़ें थी, और फिर याद कर करके उस कागज़ पर लिख ली जो न मिटाया जा सके, शायर की मुराद से हमने सोचा कि इतनी थोड़ी सी जिद करना आपसे, ये तो हमारा हक तो है। तो कभी ऐसा हुआ पुराने दिन याद आ गए और पुराने लोग सवाल आप ही करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि जहन में फिर भी कोई मिसरा उतरा और आपने इशरत आपा से शेयर किया और उस पे इशरत आपा ने गजल बना दी? नहीं, ये इनके पास अपना ओरिजिनल ख्याल है। यानी जब हमने पढ़े भी साथ साथ, तो वो हमेशा, इनकी शायरी इतनी मुख्तलिफ है और मेरा लहजा इतना मुख्तलिफ है कि वो एक मश्क अब भी शिकवा बलब है लबे फरात, एक मश्क अब भी शिकवा बलब है लबे फरात, तुझको समेट लेने की ख्वाहिश है बेहिसाब। शुक्रिया जी। भाई, क्या अच्छी महफिल सजाई है सिराज नार साहब और अदील भाई, आप लोगों ने। खुसूसी तौर पे जो बात आपने कही, क्योंकि मुझे याद है शुरू में जब इशरत आपा का हमने इंटरव्यू किया था तो उसमें जो बिहाइंड द सीन्स था उसमें था कि भाई आपने मेहर में लिखवा लिया था इनका मजमुआ फरवरी साहब का। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने मेहर में लिखवा लिया था। तो ये नहीं, किसी कदर तो ज़ाहिर एक मजाक की बात है, लेकिन एज ए क्रिएटिव मैं ये महसूस करती हूँ, यानी वैसे ही एक क्रिएटिव औरत का जो जिंदा रहना है माशरे में, वो अपने में बहुत मुश्किल चीज़ होती है। फिर उसका माशरे के और ख़ानदान के और तमाम तर तकाज़ों को पूरा करना, वो एक और पेचीदगी। और फिर जो शौहर और बीवी का एक बैलेंस होता है, और अगर वो दोनों लोग क्रिएटिव हो, जैसे कि आपने जॉन एलिया और जाहिदा हैना साहबा की मिसाल दी, और बहुत एक मैं महसूस करती हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं जाहिदा हैना की बहुत बड़ी फ़ैन पहले से थी अखबार पढ़ने की वजह से। जॉन एलिया साहब को मैं बाद में सुनना शुरू किया। मैं ये कहती हूँ कि इतनी टॉक्सिसिटी, फ़र्ज़ कीजिए कि कम उम्र में हमने इन तमाम चीज़ों की वजह से आप लोगों ने ये सारे वो किए कि अली सरदार जाफरी साहब ने आपसे बताया कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उन तजुर्बा था उनका और अजीम कुर्बानी आपने दी। लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि इस कुर्बानी का अभी तक जारी रखना ज़रूरी है? मैंने कहा कि मैंने सौदा घाटे का नहीं किया, शायरी छोड़ के शायरा ले ली तो हाँ, लेकिन अभी भी ये होता है ना कि ये तो उस वक्त वादा किया था, मगर चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो उसके बाद भी कभी कभी शेर कह लेते हैं, और खुसूसन जब कोई दोस्त आ जाता है, कोई वाक़या हो जाता है, तो कहते हैं
एक शेर था जो मैंने इंतसाब किया था इनके नाम, और इसकी वजह ये, इसकी बैकग्राउंड में मैं 1 मिनट में आपको बताऊंगी कि मेरी तमाम शायरी एक गज़ाल नर के नाम, यानी मेरी तमाम शायरी एक गज़ाल नर के नाम, जिसने निसार कर दिए मुझ पे ज़मीनो ज़र तमाम। अब उस वक्त इनका चेहरा देखने वाले था, ये क्या वाहियात है। मैंने कहा इसको वाहियात फर्ज तो बहुत खुश हो गए, कहने निकालो 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 इस सब। मैंने कहा क्यों निकालो, मैंने मुझे अच्छा नहीं लगता है, बेटी के नाम, माँ के नाम। माँ के नाम तुमने जो पहली नज़्म लिखी है वो बहुत मजबूत है, और वो एक अलग तनाजुर में है। तुम्हारी शायरी में ये सब अच्छा नहीं लगता, मियाँ के नाम, बीवी के नाम, ये चीज़ें निकाल दो अपने जहन से। तो मैंने कहा परवेज़ आपने कितनी, मतलब मैं इसको अप्रिशिएट करी हूँ, क्योंकि ज़मीन और ज़र। अच्छा आपको मैं बताऊँ, कभी भी मेरे जहन में ये नहीं आया कि इन्होंने शायरी के लिए सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने उसको इतना लाइटली लिया। और जब मैंने इनसे कहा शेर ये गज़ल कह लीजिए, लोग वहाँ बोले अरे बेगम वो सब कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये तो बस ठीक है शौकिया कहते थे हम। अच्छा मेरे जहन में ये रहा कि इन्होंने वहाँ दौलत कितनी छोड़ी है, यानी पूरा आबाई 200 साल पुरानी कोठी, जिसे दिखाने के लिए मुझे सरदार जाफरी साहब ने ख़ास तौर से ख़त लिखा था और कह के भेजा था कि मेरे भतीजे से मिलना, क्योंकि वो इस वक्त उस खानकाह का मालिक है जिसे हम सब छोड़ आए। और इनके यहाँ एक उसूल था, इन्होंने बाद में ये बात बताई कि हमारे यहाँ ये उसूल था कि जो उस कोठी से निकला उसने उसकी एक ईंट पे अपना हक नहीं जताया, और कोठी के साथ 3-3 गांव, बड़े बड़े फार्म, यानी ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं इनके पास कि 3 नस्लें अभी भी, मैं ये ऑन रिकॉर्ड कर रही हूँ कि 3 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। अभी वहाँ प्लाजा इन्होंने बनवाया और वहीं के सारे उससे सिस्टम से। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो है, लेकिन कभी मुड़ के इन्होंने एक टुकड़ा ज़मीन का बेचा ना, उस पर कोई अपना वो रखा। तो हाँ वो बच्चे जो वहाँ पर हैं, इनके भतीजा भतीजी, तो यहाँ हार्ड वर्क किया, बहुत सख्त मेहनत की, लेकिन अपनी ज़मीन या अपने घर या अपनी खानकाह से जो मोहब्बत थी उसका अजीब, मुझे बहुत मलाल होता था कि वो जगह जहाँ मैं 2011 में गई तो लोग मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, दूसरा हिस्सा घर का देखने जा रही थी, कुछ वो हो गया था, गिर गई थी दीवारें बारिश में, तो वो हम लोग चढ़ के दूसरी तरफ जा रहे थे, उसका नाम खाना पुराना हुआ करता था। तो कोई पाँव से लिपट गया हम दोनों के, जैसे मुझे महसूस हुआ कुछ हाथ है, तो मैंने देखा तो एक बूढ़ा आंसुओं से रो रहा था, कांप रहा था, और उसके आंसू मेरे और इनके पैरों पे सीढ़ियों पे गिर रहे थे, और कहना भैया काहे हमें यतीम कर गए, भैया कहाँ चले गए, और ऐसे कांपते हुए देख रहा था। इस तरह हम लोग गाड़ी से गुजर रहे थे फार्म हाउस पे, चलती हुई कार में, जीप थी हम लोग जो इनके घर की है, वो उसमें से उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर शीशे पे हाथ रख के खिड़की पे और दूर तक दौड़ता चला गया। हल्की थी जाहिर है, गांव के कच्चे जो बाग की जो सड़क होती है और उसे फार्म हाउस की, तो उस पर और रोता चला जा रहा था। उसकी आंखें, मैं वो सब चीज़ें भूल नहीं सकती, क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं और क्या क्या मतलब कौन सा ऐश और आराम था जो तो ये सारी चीज़ें, ये कुर्बानियाँ हैं जो मेरी नज़र में जो पीछे चली जाती है, वो कुर्बानी जिसको आप असल मतलब एक शायरी जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो मैंने वो शेर निकाल दिया उस मजबूरी से, इंतसाब नहीं, मेरा नाम वाम नहीं करना ये सब, लेकिन वो आज डॉक्यूमेंट हो गया है, अब तो हो गया, रिकॉर्ड पे आ गया। बिल्कुल। शाह साहब जिन्होंने 2 गज़लों की फरमाइश की थी, मैंने एक ही सुनाई थी, वो दूसरी गज़ल सुना देता। मैंने आपका वक्त ले लिया, और उसमें ये है कि ये 2 गज़लें हैं,
इसी ज़मीन में। एक उस नौजवान शायर की है अलीगढ़ वाले, एक वहाँ से निकलने के बाद की है। अच्छा, अब मैंने कहीं लिखा पढ़ा तो है नहीं, जब इन्होंने कहा तो मैंने याद करके सब वो करने शुरू किए, तो वो दोनों गज़लों के अशार मिक्सअप हो गए। तो बहरहाल गज़ल बन गई। सुनिए कि न पूछ हिजरत शहर शगुफ्तगा हमसे, न पूछ हिजरत, अभी अभी मुझे याद दिला रही है क्या क्या, लेकिन जो मैं भूल चुका हूँ, कि न पूछ हिजरत शहर शगुफ्तगा हमसे, खफा थे फूल तो नाराज तितलियां हमसे। न पूछ हिजरत शहर शगुफ्तगा हमसे, खफा थे फूल तो नाराज तितलियां हमसे, और मिला भी वक्त तो किस किस को हम मनाएंगे, मिला भी वक्त तो किस किस को हम मनाएंगे, सुना है शहर का है शहर बदगुमान, मिला भी वक्त तो किस किस को हम मनाएंगे, सुना है शहर का है शहर बदगुमान से। और मोहब्बतों में खसारे को नफा जानिएगा, मोहब्बतों में खसारे को नफा जानिएगा, कुछ और दिन जो चली इश्क की दुकान से। मोहब्बतों में खसारे को नफा जानिएगा, कुछ और दिन जो चली इश्क की दुकान से। और उठो के मौसम वहशत फिर आ गया सर पर, उठो के मौसम वहशत फिर आ गया सर पर, बताने आई हैं रख्सिंदा तितलियां हमसे। और तेरी नजर का नशा मैं कदा हरीफ हुआ, तेरी नजर का नशा मैं कदा हरीफ हुआ, खफा है प्याले तो रूठी सुराही हमसे। और सबब जुदाई का तुम ही कहो कि क्या कहते, सबब जुदाई का तुम ही कहो कि क्या कहते, जो पूछती हैं तुम्हारी सहेलियां हमसे। सबब जुदाई का तुम ही कहो कि क्या कहते, जो पूछती हैं तुम्हारी सहेलियां हमसे। और शेर सुने के रगों में गूंज गई उनके लम्स की लज्जत, रगों में गूंज गई उनके लम्स की लज्जत, कभी जो बोली हिना बस्ता उंगलियां हमसे। रगों में गूंज गई उनके लम्स की लज्जत, कभी जो बोली हिना बस्ता उंगलियां हमसे। और वो रात हो के हो दिन जब भी उस तरफ गुजरे, वो रात हो के हो दिन जब भी उस तरफ गुजरे, बसत खुलूस मिली खुल के खिड़कियां। वो रात हो के हो दिन जब भी उस तरफ गुजरे, बसत खुलूस मिली खुल के खिड़कियां हमसे। और क्यों अपने दिल की तरह हमको भी उजाड़ गए, क्यों अपने दिल की तरह हमको भी उजाड़ गए, सवाल करती हैं आबाई बस्तियां। क्यों अपने दिल की तरह हमको भी उजाड़ गए, सवाल करती हैं आबाई बस्तियां हमसे। और हमें खबर है दुआओं में याद रखती है, हमें खबर है दुआओं में याद रखती हैं, खफा जरूर है वीरान देवड़ियां। हमें खबर है दुआओं में याद रखती है, खफा जरूर है वीरान देवड़ियां हमसे। और न जानते थे जो कल तक वो जान ले परवेज, थोड़ी ताली बर्दाश्त कर लीजिए, कि न जानते थे जो कल तक वो जान ले परवेज,
کہ آج بنتی ہیں خبروں کی سرخیاں. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو یہ دو غزلہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب آپ ہائیبریڈ غزل تھی. ہاں ہاں پرویز بھائی، ہاں. اس محفل میں آج کی جو آپ کے لیے منعقد ہوئی، اس میں کیا اچھا ہو کہ آپ ہی کی زبانی آپ کے بچوں کو شامل کر لیا جائے، اور بچوں کے بچوں کو. تو 3 نام بھی اور ان کے بچوں کے، کیونکہ نانی تو آپ ابھی نینی کا رول کر کے واپس آئی ہیں. اتنا ہے کہ بلانے پہ آ جاتے ہیں. جی تو آپ وہ کیا کہیں گے؟ آپ کے 3 سوال تھے کہ 2 ہی ہوئے؟ وہ تینوں مکمل کر گئے. 4 ہو گئے. اچھا پھر یہ آ گئی چارے آپ کے بھی ہو گئی. بچوں کے نام تھوڑے سے شیئر کرنے سب کے ساتھ. ہمارے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں. بڑا بیٹا ہے، اس کا نام علی اسد جعفری ہے. 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام دعا زہرا ہے اور دوسرے کا نام فاطمہ زہرا ہے. تو یہ 3 بچے ہیں. اور اب ہاں ان کے بچے اور ہو گئے. جی ان کے نام بھی شیئر کر دیں. ان کے نام بھی شیئر کر دیں. بتائیے نانی، آپ ان کے بچوں کے نام چلیے ہم بتا دیتے ہیں. بیٹی دعا ہے ہماری، اس کے بیٹے کا نام ہے اعجاز اور بیٹی کا نام ہے آیا. تو میں نے کہا بیٹا یہ آیا تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں تو آیا کا کیا معنی تھا. تو کہنے لگی کہ نہیں امی یہ عربی نام ہے اور اس کے معنی بھی اس نے ہمیں بتائے. آیت لفظ جو ہے اس کا وہ آیا اور بہت آج کل چل رہا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ. تو اس طرح ابھی 2 بچے ہیں. چھوٹی جو ہیں وہ 6 مہینے 1 سال 6 مہینے کی ہیں اور بڑے 5 سال کے ہیں. یہ ہے ہماری کل کائنات جن کے لیے میں دوڑ دوڑ کے جاتی ہوں آسٹن. جی پرویز بھائی آپ کو بیچ میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت لمبا ہو گیا ہے، تو ایک غزل اور سنا کے ختم کر. بالکل ارشاد. جی نظم آپ نے ہاں یہ سنا دیجیے. منور رانا ہمارا دوست، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کہنے لگا اس نے اپنا ایک مجموعہ مجھے بھیجا، مہاجر نامہ. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم نے کون سی ہجرت کی ہے؟ رائے بریلی سے لکھنؤ آ گئے ساتھ. ہم سے پوچھو، ہم 10,000 میل یہاں ہیوسٹن میں پڑے ہیں. تو وہ کہنے لگا تو پرویز بھائی آپ لکھیے، آپ نے لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کے ورگلانے میں آ کے میں نے جو ہے کچھ اشعار کہے، کچھ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ منور یار کیا بتلائیں کیا کیا چھوڑ رہے ہیں. منور یار کیا بتلائیں کیا کیا چھوڑ رہے ہیں. دیوانے اپنے پیچھے ایک دنیا چھوڑ رہے ہیں اور کھلا ماں کی دعاؤں کا صحیفہ چھوڑ رہے ہیں. پرانے طاق میں آنکھوں کو جلتا چھوڑ رہے ہیں اور بدن کی خاک اٹھا لی اور چہرہ چھوڑ رہے ہیں. حویلی میں مسافر اپنا سایہ چھوڑ رہے ہیں اور ہر ایک جزدان میں لپٹی ہوئی صدیوں کی تنہائی اور ایک محراب میں خوشبو کا جھونکا چھوڑ رہے ہیں. ہر ایک جزدان میں لپٹی ہوئی صدیوں کی تنہائی اور ایک محراب میں خوشبو کا جھونکا چھوڑ رہے ہیں. اور بدلتے ہیں کہ وہاں شاخوں پہ کوئل مست ہو کر کوکتی ہوگی. وہاں شاخوں پہ کوئل مست ہو کر کوکتی ہوگی. ہم اپنے باغ میں آموں کو پتا چھوڑ رہے ہیں. وہاں شاخوں پہ کوئل مست ہو کر کوکتی ہوگی. ہم اپنے باغ میں آموں کو پتا چھوڑ رہے ہیں. اور جہاں بارش کی بوندیں ٹین پر ملہار کرتی تھی، ہمارے یہاں تو کہا جاتا واٹر ٹین. سو ہمارے ہاں تو وہ سہانا
मौसम होता था सावन का कि जहाँ बारिश की बूंदें तीन पर मल्हार गाती थी, वो सावन छोड़ आए हैं, वो कोठा छोड़ आए हैं। और शेर लाजा हो कि जिसे सदियों की मेहनत से बुजुर्गों ने सजाया था, जिसे सदियों की मेहनत से बुजुर्गों ने बनाया था, वो उर्दू और वो उर्दू का लहजा छुपा। हवेली का जो ये जिक्र कर रहे थे वो तो ठीक है, मगर जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो ये है कि जिसे सदियों की मेहनत से बुजुर्गों ने बनाया था, वो उर्दू और वो उर्दू का लहजा छुपा। और हमारे जिस्म तो रहते हैं अमेरिका के शहरों में, हमारे जिस्म तो रहते हैं अमेरिका के शहरों में, वतन में रूह को अपने भटकता छोड़ा। और कहानी को जहाँ से एक अनोखा मोड़ देना था, उसी मंजिल पे हम उसको मुनव्वर यार क्या बतलाएं, क्या क्या आप बहुत मुश्किल से पकड़ लेते ये फरमाइश कर रही हैं परवरदिगारे तीरा समर, और अब हम वहीं बैठे हैं। बहरहाल नज़्म है कि रात के तारीक रुखसारों पे सुबह नौ की चिंगारी जली, एक नूर का दरिया बहा, कुछ दूर चलकर चीखते शोलों के बेचेहरा समंदर में गिरा। हिरोशिमा पर आग बरसी जिसमें वियतनाम पर छाले पड़े, और वो रफ्ता रफ्ता वो खुदाए नूर व दानिश, वो खुदाए अक्ल नौ, वो के जो तहसीब अहदे नौ का था परवरदिगार, किस तरह परवरदिगार तीरा सामानी होगा। अच्छा वो वाली नज़्म ये फरमाइशें शुरू हो गई तो चलती जाएंगी। बहरहाल चलिए ये आखिरी नज़्म, इसका उन्वान है तन्हाई का जश्न। जी जी। आज तुम आई हो आंखों में जलाए हुए अश्कों के चिराग, आज तुम आई हो आंखों में जलाए हुए अश्कों के चिराग, आओ बैठो इसी वीराने में, अब मेरे पास बचा ही क्या है। एक दिन वो था कि जब शहर का हर मैखाना अपनी सांसों में बसा रहता था, चांदनी रात का सारा जादू, धूप के जिस्म का सारा सोना अपनी राहों में बिछा रहता था। तेरी आंखों में सुलगते थे अजंता की गुफाओं के तिलिस्म, मेरी आंखों में मचलते थे शरारत के कई ताजमहल। हम जो हंसते थे तो हर पांव थिरक उठता था, झूमने हम तो हंसते थे तो हर पांव मचल उठता था, झूमने लगती थी परछाइयां सन्नाटों की, अपनी आगोश में दिन रात भी सो जाते थे। जब तेरी आंखों में जादू था मेरे पास जुनून, जाने क्या सोच के हम लोग बहुत दूर चले गए। आज हम दोनों बहुत दिन पे मिले हैं, लेकिन तेरी आंखों में भी भीगे हुए सन्नाटे हैं, और मेरे पास भी चलती हुई आंखों के सिवा कुछ भी नहीं। आओ बैठो कि मनाए इन्हीं वीरानों में तन्हाई का जश्न, अब तो मजबूर हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे। हमारी जितनी भी किताब और चाय की तकरीबात हुई हैं वो सारी की सारी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, जिसका QR कोड जो है यहाँ पर है, तो आप उसके ज़रिए से वो तमाम वीडियोस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं ज़ीशान का बहुत मशकूर हूँ। डे 1 से किताब और चाय की तमाम तकारीब को उन्होंने एज अ वॉलंटियर कवर किया है,
without any excuse. जीशान का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह करे कि जीशान और उनके अमेरिकन उर्दू टीवी को कामयाबियाँ मिलती रहें। महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, हर वक्त हमारे साथ रहकर इन तकरीबात को कामयाब बनाते हैं। आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आते हैं, सपोर्ट करते हैं, करते रहिए। आप लोग आते रहेंगे तो ये महफिल इस तरह चलती रहेंगी। अदील भाई, I don't know what we can do without you. So हमारी मोहब्बत का कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया, हम ना होंगे कोई हम सा होगा। क्या अगर ये जैसा कोई और सदर हुआ तो सही कहा। मसला ये है। तो once again, thanks to all of you. बाहर चाय समोसा हमारा इंतजार। बहुत शुक्रिया। तस्वीर ले लीजिए। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मेरी आंखों में तो यकीनन आंसू थे, क्योंकि पाकिस्तान से छोड़ के आना वो भी कोई आसान काम नहीं था। और जब भी पाकिस्तान जाते हैं लगता है कि दिल वहीं फंसा हुआ है। मेरा ख्याल है किताब और चाय की सबसे बेहतरीन महफिल। वाह। जाफरी साहब को लगा कि बहुत देर हो गई है, लेकिन हम बड़े माफ से सुन रहे थे और हमें नहीं लग रहा था कि देर हो गई। एक बेहतरीन मुंतजिम मुशायरे का, एक बहुत बड़ा शायर, एक बहुत बड़ा इंसान और एक खूबसूरत कपल। मुझे बेता खुशी है कि आज हम ये तहरीक कर पाए। अगर न कर पाते तो ये हमारी बदनसीबी होता है। जाफरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। कर दूँ आपके शुक्रिया के साथ कि मैं वकील भी रहा हूँ कि मन के सैयद परवेज हैदर जाफरी इब्ने सैयद अली असरार जाफरी बाहलफ बयान करता हूँ कि मुझे अपने बारे में कोई खुशफहमी नहीं। इब्तिदाई उम्र में हो सकता है कि ऐसा कुछ मर्ज रहा हो, लेकिन अब अल्लाह के फजल से सेहतियाब हो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुसूसन मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि पाकिस्तान एसोसिएशन ने, मेरी पाकिस्तान एसोसिएशन ने एक शानदार प्रोग्राम किया, मोहब्बत से और दिल से किया, और आपको अल्लाह ताला और ऐसे हमेशा करने की तौफीक दे ऐसे प्रोग्राम, और ये अंजुमन यूँ ही चलती रहे। आबाद रहें, शाद रहें। अदील के लिए दुआएं, आपके लिए।